السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ ریڈیو بدکسا میں خوش آمدید۔ آج میں حاضر خدمت ہوں عنکبوت بائی نور راجپوت کا سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ کا 4تھ پارٹ لے کر۔ اور ایپیسوڈ اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کو کوئی اسپوائلر نہیں چاہیے تو کامنٹس نہیں دیکھنا، پھر لاسٹ ٹائم والا سین ہو جائے گا ورنہ، اور پھر یہ پورا ایپیسوڈ ہی ایسا ہے کہ آپ کو سانس روک کر سننا پڑے گا، اس لیے میں پہلے ہی وارن کر رہی ہوں، نہیں تو پورا ایپیسوڈ ہی اسپوائل ہو جائے گا اس لیے۔ اور میرے ساتھ یہ سین ہو چکا ہے کیونکہ اور نیکسٹ ایپیسوڈ کی اپڈیٹس کے لیے پورا ایپیسوڈ سننا ہے آپ کو لاسٹ تک، کیونکہ میں اینڈ میں ہی بتاتی ہوں کہ نیکسٹ ایپیسوڈ کب تک آئے گا اور آتا ہے۔ اور باقی لیٹسٹ اپڈیٹ کے لیے آپ کو چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، جس سے میں کوئی بھی اپڈیٹ شیئر کروں گی تو آپ کو مل جائے، اس لیے تو اب چلتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ رات کی ٹھنڈی ہوا فارم ہاؤس میں پرانی رہداریوں میں سنسناٹی پھر رہی تھی۔ اینٹوں سے بنے لمبے اداس کوریڈور میں زرد روشنی کے بلب جھول رہے تھے اور چھت سے جھڑتے بالوں کو ہلکے ہلکے تھپتھپا رہے تھے۔ اسی سناٹے میں سیڑھیوں کے آخری موڑ پر ایک سایہ ٹھہرا ہوا تھا۔ وہ دھیرے سے محراب دار کھڑکی کے پاس جا کر رکی۔ باہر فارم ہاؤس کی روشنیاں اب بھی چل رہی تھیں، اندر آتش فانوس اور کیمروں کی فلیشز ابھی تک جھلملا رہی تھی۔ اس نے ایک بے آواز ہنسی ہونٹوں پر آنے دی۔ وہ جانتی تھی بادشاہ ٹوٹ گیا ہے۔ اس نے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں سے کھڑکی کا کھنک شیشہ چھوا۔ زخم کی ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے نا؟ وہ خود سے سرگوشی کرتے ہوئے ذرا سا جھکتی ہوئی اور نیچے لون کے ایک کونے کو گھورنے لگی جس طرف رئیس ابھی کچھ لمحات پہلے گرا تھا۔ اس کے لب ہولے سے کپکپائے۔ تمہیں فجر کے لیے آنا تھا بادشاہ، اور یہی تمہاری سب سے بڑی شکست تھی۔ ہوا کی ایک سرد لہر اس کے کھلے بالوں سے گزری۔ مگر مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی کہ تم محبت پر حکومت چن لو گے۔ اس نے گہری سانس لی۔ خیر، میرے پاس تمہیں تباہ کرنے کے ہزاروں راستے ہیں۔ اس کا ریشمی لباس سرسرایا تھا۔ چند لمحوں کی خاموشی۔ اس کی نگاہ پھولوں کے اس راستے پر پڑی جس پر سے فجر رئیس کے بازو کو تھام کر گزر رہی تھی۔ مگر یہ پیادہ میرا کھیل خراب کر رہا ہے۔ اس نے آنکھیں نیم وا کی، جیسے اس راستے پر اپنے ذہن سے خونی سیاہی انڈیل رہی ہو۔ ایک ہلکی سی خنجر جیسی مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیل گئی۔ ولی اورنگزیب، اس نے بہت آہستگی سے تقریباً محبت بھرے لہجے میں اس کا نام لیا، اور پھر وہ لہجہ یکدم سرد پڑ گیا۔ تم نے میری بات نہ مانی، فجر کو چن لیا، تم نے میری بازی بگاڑ دی۔ وہ پیچھے ہٹی، سیدھی کھڑی ہوئی اور گردن ذرا سا خم کر کے اپنے نچلے ہونٹ کو دانتوں میں لے لیا، جیسے غصے کے گھونٹ کو نمکین مسکراہٹ کے ساتھ نکل رہی ہو۔ اس نے کمرے کی حدت بھری ہوا کا شکار بننے کے بجائے اپنی نگاہ دوبارہ روشنیوں کی سمت جما دی۔ نیچے لون میں بکھرا ہوا پھول، ہر چراغ، ہر کہکا، سب اسے یقین دلا رہے تھے کہ بادشاہ ہار چکا ہے، اور اس ہار کی سب سے بڑی چشمدید گواہ وہ خود تھی۔ منار، تم سب مرو گے، وہ آہستہ سے بولی، جیسے خود کو کسی گہرے شہر میں لے جا رہی ہو۔ آواز میں کوئی جوش نہیں تھا، کوئی دشمنی کی چیخ نہیں تھی، صرف ایک نہایت پرسکون یقین، ایک مکڑی کے جال کی طرح ٹھنڈا اور خاموش یقین۔ وہ پلٹنے ہی لگی تھی کہ پھر رک گئی، اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر آنکھیں بند کی اور ایک اور سرگوشی کی۔ اگلی چال میرے نام کی ہوگی، جوزف کی اولاد۔ تم اپنا خسارہ تب سمجھو گے جب سب کچھ ہاتھ میں ہونے کے باوجود تمہاری مٹھی خالی نکلے گی۔ پھر وہ مکمل پرسکون انداز میں چلتی ہوئی تاریک راہداری کی جانب بڑھ گئی۔ اس کے پیروں کی آہستہ آہستہ پڑتی چاپ ایسے گونج رہی تھی جیسے کسی قدیم حویلی میں کوئی روح قدم با قدم اپنی حکمرانی کا آغاز کر رہی ہو۔ دور کہیں کوئی دروازہ ہلکا سا چرچرا کر بند ہوا۔ شکاری مکڑی نے ایک اور ڈور کھینچ دی تھی۔ یہ چند دن بعد کا منظر ہے۔ رئیس ہیڈ آفس کی فضا میں ایک مانوسیت سی گھل گئی تھی۔ فلک اب اس ماحول کا حصہ بن رہی تھی۔ ڈیزائنر روم، جو شیشے کی شفاف دیوار سے بنا تھا، اس کا نیا تخلیقی گوشہ تھا۔ یہاں دیواروں پر لگے سفید بورڈز پر اس پروجیکٹ کے کردار کے نام، ان کی خصوصیات اور ان سے جڑے زیورات کے خاکے پنوں سے لگے ہوئے تھے۔ کمرے میں پھیلی کافی کی مہک اور دھیمی روشنی سوچنے اور لکھنے کے لیے بہترین تھی۔ وہ آج گہری خاکی رنگ کا گرم سوٹ پہنے ہوئے تھی، جس پر اس نے ایک لمبا سیاہ کوٹ ڈال رکھا تھا۔ پاؤں میں گرم جوتے اور گلے میں لپٹا ہوا اسکارف اسے سردی سے بچا رہا تھا۔ جب وہ گہرائی سے سوچتی تو بے دھیانی میں اپنے قلم کا سرا ہونٹوں سے لگا لیتی۔ اس کی ناک میں چمکتی وہ ننھی سی نوز پن جو بس نہایت قریب آنے پر ہی نظر آتی تھی۔ کمرے کی نیم گرم روشنی میں جب کبھی جھلملاتی تو اس کی سنجیدہ چہرے پر ایک نرم سا تاثر چھوڑ جاتی۔ وہ حماد کے ساتھ اپنی کہانی کے مرکزی کردار پر بات کر رہی تھی۔ حماد اس کی بات پوری توجہ سے سن رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں فلک کے لیے عزت اور اس کے کام کے لیے
27 थी। वो उसके लफ्ज़ों को जहन में बिठाकर खाकों को हतमी शक्ल दे रहा था। जब वो काफ़ी कुछ तय कर चुके तो फलक ने अपनी डायरी बंद की और जाने के लिए उठ खड़ी हुई। तभी उसकी नज़र शीशे की दीवार से बाहर वसी और इस हॉल पर पड़ी। वहाँ से रईस आ रहा था। आज वो बिल्कुल मुख्तलिफ हुलिये में था। 3 पीस सूट की जगह उसने हल्के नीले डेनिम पैंट पर एक महंगी क्रीम रंग की ऊंची गर्दन वाली शर्ट टर्टल नेक पहन रखी थी। उसके बाल मामूल से कुछ ज़्यादा ही बिखरे हुए थे, जैसे किसी तवील मीटिंग से उठकर आया हो। उसके साथ पूरी टीम थी, डिज़ाइनर्स, मार्केटिंग हेड्स और प्रोडक्शन मैनेजर्स। वो चलते चलते किसी नक्शे पर उंगली रखकर पुरजोश अंदाज में कुछ समझा रहा था। उसके चेहरे पर वो पेशवराना शक्ति नहीं थी जो पिछली बार दफ्तर में थी, बल्कि एक तख्लीक़कार का जुनून और एतमाद था। वो किसी मीटिंग से निकले थे या शायद किसी नए प्रोजेक्ट की साइट की तरफ जा रहे थे। उसे और उसकी सल्तनत को इस तरह मुतहरिक देखकर फलक के जहन में बेइख्तियार ही एक सवाल उभरा। वो हम्माद की तरफ मुड़ी, जो अब भी खाकों को तरतीब दे रहा था। वैसे इस कलेक्शन का बजट क्या है? उसकी बात पर हम्माद ने सर उठाया। पहले उसके चेहरे पर एक लम्हे की हैरानी उभरी, जैसे ये सवाल इस माहौल में अजनबी हो। फिर वो हौले से मुस्कुरा दिया कि मुस्कुराहट में फख्र का अंसर नुमाया था। यहाँ बजट या पैसा डिस्कस नहीं किया जाता मिस फलक। रईस के लिए यह मायने नहीं रखता। रईस ग्रुप बजट और कीमतों से बहुत ऊपर उठ आया है। उसने जवाब तो सुन लिया था, मगर उसकी नज़रें अभी भी बाहर ही जमी थी। वो अपने गिरोह के साथ अब बिल्कुल उनके शीशे के कमरे के करीब से गुजर रहा था। उसकी पुरएतमाद आवाज़ की हल्की सी गूंज शीशे के पार से महसूस हो रही थी। उसने एक लम्हे के लिए भी उस कमरे की तरफ नहीं देखा। उसकी दुनिया उसके काम में गुम थी। वो अपने लोगों के साथ चलता हुआ दाएं जानिब राहदारी में मुड़ गया और नजरों से ओझल हो गया। फलक ने एक गहरी सांस लेकर खुद को संभाला। हम्माद की बात और रईस का ये अंदाज, यहाँ आकर उसे आहिस्ता आहिस्ता समझ आ रहा था कि उसके ब्रांड का लोगो ताज क्यों था। वो सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं था, वो वाकई अपनी दुनिया का बादशाह था, जिसके लिए वसाइल की कोई हद नहीं थी, जिसके लिए सिर्फ एक ही चीज़ अहम थी, तख्लीक का बेहतरीन मयार। वो कीमत नहीं लगाता था, वो कदर पैदा करता था। उस एहसास ने उसके दिल में मज़ीद एक अजीब सी लहर पैदा की। ये शख्स अपनी ज़ाती ज़िंदगी में कितना ही हारा क्यों ना हो, अपनी पेशवाराना दुनिया में वो नाकाबिल तस्कीर था। वो इस वक्त अपनी कमर की सीट से कुर्सी की पुर्ज से लगा मेज़ पर रखी फाइल को खामोशी से देख रहा था। सियाह रंग की फोल्डिंग वॉल में टिकी बड़ी सी घड़ी की सुइयाँ यकसा रफ्तार से आगे बढ़ रही थी, मगर उस लम्हे उसे हर गुजरता सेकंड गैर मामूली महसूस हो रहा था। कुछ देर पहले उसने अरुजा का नंबर मिलाने की कोशिश की थी, 1, 2, फिर तीसरी बार, मगर दूसरी तरफ मुकम्मल खामोशी थी। मोबाइल की स्क्रीन पर उभरने वाली सिर्फ वही एक जुमला था कि उसका मतलूबा नंबर बन जा रहा था। ये जुमला उसके दिल में किसी अनजाने खदशे की तरह ठहर गया। फिर हैरत से फ़ोन को ज़रा फासले पर रखा, जैसे ये किसी मजाक का हिस्सा हो, मगर नहीं। अरुजा का नंबर बंद होना मजाक का हिस्सा नहीं था। ऐसा उसने इन दर्जन से ज़्यादा सालों में कभी नहीं किया था। कॉन्फ्रेंस टेबल पर रखी फाइलें, साइट रिपोर्ट्स और डेवलपमेंट प्लान्स उसकी निगाहों के सामने बिखरे थे, मगर जहन कहीं और उलझ गया। उसने फ़ौरन इंटरकॉम का बटन दबाया। अरुजा कहाँ है? फ्रंट डेस्क की आवाज़ दूसरी तरफ से आई झिझकते हुए। सर, मैडम आज आई नहीं, उन्होंने कोई इत्तला भी नहीं दी। चंद सानियों के लिए कमरे में एक दबा हुआ सकूत छा गया। उसने इंटरकॉम ऑफ किया, कुर्सी की पुष्ट से कमर अलग और फाइल्स समेटकर एक तरफ रख दी, मगर इस खामोशी ने कमरे की फिजा को और मज़ीद भारी कर दिया था। दिन भर उसने खुद को मसरूफ़ रखने की कोशिश की। मीटिंग्स, अगले फेज़ की प्लानिंग, बेशुमार दस्तखत और दोपहर तक जारी रहने वाली ब्रेन स्टॉर्मिंग, मगर हल्का सा खला मुसलसल उसके वजूद के गिर्द लिपटा रहा। और जब कभी उसे किसी कार्रवाई के दौरान अरुजा की राय या हिदायत की ज़रूरत महसूस होती, तो रखे हुए चुपचाप चैम्बर पर निगाह पड़ती, जैसे वो एहसास दिलाने के लिए खाली छोड़ा गया हो कि आज अरुजा नहीं है। शाम ढलते ही मीसम ने जिम्मेदारियां संभाल ली। वो हर रिपोर्ट रईस के सामने लाकर रखता, हर फाइल से मुतालिक मुख्तसर मगर दुरुस्त ब्रीफ देता। वो नर्वस था, मगर कोशिश कर रहा था कि कमी महसूस न होने दे। रईस ने उसकी संजीदगी को सराहा, मगर तमाम बातों के बीच एक अनजाना सा एहसास रह रहकर हलचल मचाता था। अरुजा कहाँ थी? आखिर क्यों उसने इत्तला नहीं दी? रात ने आहिस्ता आहिस्ता अपने पर फैला दिए थे। हेड ऑफिस रात के सन्नाटे में भी सांस लेता महसूस हो रहा था। पूरी इमारत में मध्यम रोशनियों का जाल बिछा था, जिसमें काम की थकन और जिम्मेदारियों की खुशबू घुली हुई थी। तमाम फ्लोर्स पर फैले ग्लास वॉल्स कमरे राहदारियों में झिलमिलाती स्टील लाइट्स और मुसलसल चलते
सिस्टम्स की मध्यम गूंगू। ऐसा लगता था जैसे ये सरजमीन दिन के इख्तिताम के बावजूद अब भी मुकम्मल तौर पर बेदार हो। वो अब एक बार फिर अपने मेज़ पर मौजूद था, अपने ऑफिस में। कोट की आस्तीन थोड़ी सी मोड़ी, मेज़ पर रखी घड़ी पर निगाह डाली। रात के 9:45 बज रहे थे। अचानक लिफ्ट की टन की आवाज़ हल्की सी बाज गज के साथ उभरी। उसने सर उठाया। चंद लम्हों बाद लिफ्ट का दरवाज़ा खुला और मीसम अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में चंद फाइल्स थे और परेशानी पर खामोशी और उलझन के आसार फैले हुए थे। ये पहला मौका था जब वो बराह रास्त रईस के पर्सनल ऑफिस में आया था, 10 सालों में पहली बार। उसके कदम मौक्कर और हल्के थे। वो आहिस्तगी से आगे बढ़ा और मेज़ के करीब आकर एहतराम से खामोशी इख्तियार कर गया। रईस ने सांस दबाकर सर अस्बात में हिलाया। मीसम ने ताज़ा रिपोर्ट्स सामने रखी और मुख्तसर तौर पर साइट्स की अपडेट देने लगा। उसकी आवाज़ धीमी थी मगर हर लफ्ज़ नपातुला। उसने खामोशी से सुना, सवालात किए और एक दो अहम फैसलों पर मुख्तसर नोट्स दिए। सब कुछ बज़ाहिर मामूल के मुताबिक था मगर कमरे में कोई अनजानी सी बेचैनी थी। आखिर में मीसम ने इजाज़त लेने के लिए हल्का सा सर झुकाया, फाइल समेटने लगा और आहिस्ता आहिस्ता पलट गया। मगर जब वो चंद कदम चलकर चुका था तो ठिठक कर रुक गया, जैसे किसी ने उसके कदमों से फर्श खींच लिया हो। रईस के माथे पर एक हल्की सी शिकन थी। कुछ कहना है? उसकी बेचैनी पिछले 15 मिनट से महसूस कर रहा था। मीसम ने लम्हा भर की खामोशी के बाद गहरी सांस ली, अपनी खुश्क होती हुई ज़बान को हलक में घुमाया, फिर एहतियात से बोला, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है बॉस। रईस ने आबरू सवालिया अंदाज में उठा दिए। कुर्सी की पुश्त से वो ज़रा सीधा हुआ, आंखों में सर तजस्सुस। बोलो। मीसम ने एक नज़र झुकाई जैसे लफ्ज़ चुने जा रहे हों, फिर किसी हिम्मत को जमा करके धीरे से बोला, ये अरूजा से मुतालिक है। एक लम्हे को फिजा जैसे थम गई। उसके अल्फाज कमरे में किसी धीमी दस्तक की तरह गूंजे। रईस के होठ एक लम्हे को सख्त हुए मगर उसने फ़कत अस्बात में सर हिलाया। कहो। मीसम ने घबराहट के बावजूद बात मुकम्मल की। मुझे ये कहना तो नहीं चाहिए मगर मैडम अरूजा आजकल कुछ अजीब सा बर्ताव कर रही हैं। वो पहले जैसा काम नहीं कर रही। कई साइट्स उन्होंने कई दिनों तक विजिट नहीं की और कुछ जगहों पर वर्किंग में ताख़ीर हुई है। कई जगह पर सिक्योरिटी अपडेट्स नहीं हुई। मैं नहीं जानता ऐसा क्यों है, लेकिन उनकी ज़रा सी भी बेखबरी बहुत बड़ा नुकसान करवा सकती है बॉस। उसने आखिरी जुमला धीमी मगर पूरी सच्चाई के साथ कहा और सर झुका लिया। रईस ने बहुत आहिस्तगी से कुर्सी पर मध्यम सा जाविया बदला। उसके चेहरे पर सत्य सा सुकून था मगर आंखों में एक खामोश सा लोहा उतर आया था। वो बहुत धीरे नमकीन सर लहजे में बोला, तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो और किसके बारे में कह रहे हो? मीसम बदसतूर सर झुकाए खड़ा रहा। उसकी आवाज़ में इस बार हल्की सी लर्जिश शामिल थी। जी बॉस, जानता हूँ। मैं मैडम अरूजा की वफादारी पर कतन शक नहीं कर रहा मगर रईस ग्रुप मेरे लिए सब कुछ है। बस मुझे लगा शायद वो अपनी तरफ से किसी परेशानी में है, लेकिन ठीक है। उसने मीसम की बात दरमियान में काट दी। आवाज़ में जज्बात नहीं थे, सिर्फ एक हतमी नुक्ता, तुम जा सकते हो। मीसम ने सर अस्बात में हिलाया, खामोशी से मुड़ा और उसी एहतराम के साथ वापस लिफ्ट की तरफ चल पड़ा। कदमों की आवाज़ धीमी थी मगर उस पुरसकून कमरे में साफ सुनाई देती थी, यहाँ तक कि लिफ्ट का दरवाज़ा बंद हो गया और खामोशी दोबारा पूरे ऑफिस में फैल गई। मीसम के जाने के बाद उसने गहरी सांस ली। उसने कमर सीधी की और कुर्सी की पुश्त से टेक लगा दी। कमरे की दीवारों पर हल्की जर्द रोशनी अब इस खामोशी में किसी गहरी सोच की तरह ठहरी हुई थी, महसूस हो रही थी। अरूजा। उसने आंखें बंद किए बगैर जहन में उस नाम को दोहरा कर सोचा। वो उसकी हालत को समझता था, जानता था कि उसकी ज़िंदगी में बहुत कुछ टूटा था और वो अपनी ज़ात के किसी खाली गोशे से न बर्दाश्त में थी, मगर काम के मैदान में अरूजा कभी भी गफलत नहीं बरत सकती। वो ऐसा शख्स था जो जज्बात और पेशवाराना शऊर के दरमियान वाज़ेह लकीर खींचता था और अरूजा हमेशा उस लकीर के एहतराम में खड़ी हुई थी। तो फिर ये सब क्या था? इस सवाल ने उसके वजूद में हल्की सी झुझुरी सी दौड़ा दी। उसने एक बार फिर मेज़ पर रखी स्क्रीन की तरफ देखा, जैसे किसी गैरमरी जवाब की तलाश में हो। चंद सानिया यूं ही बीत गए। दफ्तर की दीवार पर नस्ब घड़ी की टिक टिक अब पहले से कहीं ज़्यादा वाज़ेह महसूस हो रही थी। बाहर दूर कहीं शहर के रोशन बिलबोर्ड्स चमक रहे थे, जैसे याद दिला रहे हों कि ये दुनिया रुकती नहीं। हाकिम हो या राया, चोट खाई रूह हो या मुस्कुराता चेहरा, काम जारी रहता है। उसने आहिस्ता से अपनी कोहनी मेज़ पर टिकाई, उंगलियों के पोरों को माथे पर रखा और पलकें चंद लम्हे के लिए मूंद ली। उसकी नज़रों के सामने अरूजा का पुरसकून चेहरा, उसकी मजबूत आवाज़ और
मुस्तकिल मिजाजी एक के बाद एक आकर रुकती रही। वो बेतरह उलझ गया। खामोशी अब पहले से ज्यादा गहरी थी। रात का सन्नाटा पूरे घर पर एक गहरी चादर की तरह फैल चुका था। बाहर सड़क के किनारे खड़े दरख्तों की गुजरती सर्द हवा की सरगोशियां ऐसी थी जैसे वक्त ने अपने कदमों की चाप धीमी कर दी हो। फिरोज जमाल का घर, जो हमेशा एक मुनसिम और पेशवराना खामोशी में डूबा रहता था, आज कुछ ज्यादा ही साकित और बोझल महसूस हो रहा था। लाउंज की गोशे में मौजूद ऑफ वाइट सोफा और सामने रखी शीशम की मेज अपनी जगह वैसे ही बेजान खड़ी थी, मगर उनके दरमियान की फिजा किसी अनकहे सवाल के नाकाबिले बर्दाश्त बोझ से भारी थी। वहाँ सोफे के एक कोने में अरूजा बैठी थी, ऊंची दराज कामत, घने सियाह बाल जो उसकी गर्दन से नीचे ढलक रहे थे, मगर आज वो रईस ग्रुप के मैगजीन पर नजर आने वाली पुरएतमाद सिक्योरिटी हेड नहीं लग रही थी। वो एक आम सी लड़की थी जिसने किसी पुरानी बोसीदा लॉन की शॉल की तरह अपने गिर्द खामोशी लपेट रखी थी। नीम तारीख लाउंज में लैंप की मध्यम जर्द रोशनी उसके चेहरे के एक हिस्से को मुनव्वर कर रही थी। हाथ में पकड़ा चाय का कप उसकी उंगलियों की गिरफ्त में मकीद था, मगर चाय से उठते भाप के मरगोले भी जैसे उसे ये एहसास दिलाने से कासिर थे कि वो इस लम्हे इस कमरे में मौजूद है। उसकी भूरी रंगत हमेशा की तरह शफाफ और रोशन थी, मगर उस रोशनी में आज कोई गहरी खामोशी थकन बेबस थी। दूसरे सोफे पर मिस्टर फिरोज जमाल बैठे थे। सर के बालों में चांदी की लकीरें अब वाज़ेह हो चुकी थीं, मगर चेहरे पर वही रौबदार तासुर था जो एक मंसूबे बैंकर का खासा होता है। उनकी आंखों में वक्त की थकन भी थी और एक बाप की खामोश गहरी परेशानी भी। काफ़ी देर तक वह अरूजा को टकटकी बांधे देखते रहे। जब खामोशी नाकाबिले बर्दाश्त होने लगी तो उनके लब हिले। तुम क्या करने जा रही हो अरूजा? उनकी आवाज़ धीमी थी, मगर लहजे में एक वाज़ेह बेचैनी और एक अनजाना खौफ छिपा हुआ था। लेकिन अरूजा वहाँ नहीं थी। नहीं, वो उस वक्त बिल्कुल वहाँ नहीं थी। जिस्मानी तौर पर वो उस सोफे पर मौजूद थी, मगर उसकी रूह माजी के एक गहरी खारदार भूल भुलैया में भटक रही थी, वहाँ जहाँ उसके रग रग में दर्द, बेबसी और बचपन की उलट पुलट यादें दफन थी। ये बरसों पहले की बात है, जब वो सिर्फ अरूजा थी, ना कोई सिक्योरिटी हेड, ना हाई टेक्नोलॉजिस्ट, एक आम सी कॉलेज स्टूडेंट जिसके हाथों में लैपटॉप और डिजिटल फाइल्स के बजाय पेंट ब्रशेस और कैनवस हुआ करते थे। फिरोज जमाल तब मुल्क के सबसे बड़े बैंक के मरकजी ब्रांच के डायरेक्टर थे। उनका नाम काबिलियत, दयानत और उसूल परस्ती की अमानत था। अरूजा अक्सर कॉलेज के बाद उन्हें लेने बैंक जाती और अपने बाप के लिए अमले की आंखों में अकीदत और एहतराम देखकर फख्र से भर जाती। मगर फिर एक दिन आसमान टूट पड़ा। एक ऐसी सुबह तुरी हुई जिसके सूरज में रोशनी नहीं, रुसवाई की तपिश थी। शहर भर के न्यूज़ चैनलों पर एक ही ब्रेकिंग न्यूज़ गर्दिश कर रही थी। मारूफ बैंकर फिरोज जमाल दहशतगर्द तंजीमों की फंडिंग के इल्ज़ाम में गिरफ्तार। ये इल्ज़ाम नहीं, एक तोहमत थी। फिरोज जमाल एक रियल बैंकर थे, इंतहाई काबिल एहतराम। कुछ अरसे पहले किसी NGO के अकाउंट की रिन्यूअल अप्रूवल हुई थी। वो फाइल किसी ने फिरोज जमाल के फॉर्ग्ड सिग्नेचर लगाकर अप्रूव कर दी थी। कुछ हफ्तों बाद वो NGO दहशतगर्दी की फंडिंग में मुलव्वस निकली। साथ ही बैंक के कुछ हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स का कॉन्फिडेंशियल डेटा लीक हो गया। डिजिटल ट्रायल में फिरोज जमाल का ID शो हुआ। मीडिया ने दोनों चीज़ें मिलाकर फिरोज जमाल दहशतगर्दों की फंडिंग और उनके लिए डेटा लीक करने में मुलव्वस बना दिया। हकीकत ये थी कि उनकी ID हैक किया गई थी। किसी ने दलील पर तवज्जो नहीं दी, किसी ने उनके 30 साला बेदाग करियर को नहीं देखा। वो दिन लम्हा ब लम्हा एक भयानक ख्वाब में बदलता चला गया। अरूजा को वो मंजर आज भी याद था। जब वो कॉलेज की गेट से बाहर निकली तो दर्जनों कैमरों की चकाचौंध रोशनियों ने उसका रास्ता रोक लिया था। वो सहमी हुई खाली निगाहों से उन रिपोर्टर्स को देख रही थी जो माइक उसके चेहरे के करीब लाकर चीख रहे थे, उसके बाप के खिलाफ जहरीले सवालात बरसा रहे थे। उस दिन पहली बार उसने दुनिया के असल सफाक और बेरहम चेहरे को देखा। मुकदमा चला और नाकाफी सबूतों के बावजूद एक ताकतवर लॉबी ने उन्हें मुजरिम ठहरा दिया। फिरोज जमाल को सलाखों के पीछे धकेल दिया गया। फिर वो शाम आई जिसने सब कुछ बदल दिया। जब पूरी दुनिया फिरोज जमाल के खानदान से मुंह मोड़ चुकी थी, उस वक्त रईस सामने आया था, क्योंकि जब औरंगजेब खानदान पर मुश्किल वक्त आया था, जब आफाक औरंगजेब की मौत हुई थी, तब फिरोज जमाल औरंगजेब खानदान की मदद को खड़े थे। आफाक औरंगजेब और फिरोज जमाल बचपन के दोस्त थे। ये अरूजा के घर का खामोश सा लाउंज था। वो सोफे के कोने में खौफजदा और टूटी हुई बैठी थी। उसकी आंखें मुसलसल दरवाजे पर जमी थी, जैसे वहाँ से कोई मौजूदा नमूदार होने वाला हो।
दरवाज़ा खुलने की हल्की सी आवाज़ आई और उसने इस बार रईस को देखा। सफ़ेद शर्ट, सादा सिया पैंट, आंखों में बहुत कुछ खोने का गम और थकन, मगर चेहरे पर चट्टान जैसा अज़्म। वो खामोशी से आगे बढ़ा बगैर एक लफ्ज़ कहे और सीधा उसके सामने पंजों के बल बैठ गया। पहले तो अरुजा ने नजरें नहीं उठाई, आंसू उसके गालों पर खुश्क हो चुके थे। फिर वो एक ऐसी नरमी भरे लहजे में बोला जो सिर्फ मरहम रखने वाले जानते हो। कैसी हो रोज़ा? एक पल को अरुजा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, आंखों में हैरत और उलझन थी। मेरा नाम अरुजा है, उसने तस्दीक की। अलबत्ता नजरें उसके चेहरे पर थीं। वो रईस को जानती थी, मगर इतना इंटरेक्शन कभी नहीं हुआ था। उसके सामने घुटनों पे बल झुका मर्द वजीहा था। वो हल्का सा मुस्कुराया, उसकी मुस्कुराहट में तसल्ली थी। जानता हूँ, लेकिन तुम पर रोज़ ज़्यादा सूट करता है, सब्र और हिम्मत की अलामत। वो उसके पास बैठ गया और बहुत धीरे से उसके सर पर हाथ रख दिया, जैसे बरसों से सिसकती तन्हा खड़ी उस लड़की की पुश्त पर किसी ने इख्तियार और हिफाजत का साया रख दिया हो। उठो रोज़ा, उसकी आवाज़ में एक हुक्म और एक हौसला था। ये तुम्हारा कमज़ोरी में बैठने का वक्त नहीं, तुम अपने बाबा का नाम वापस लाओगी और मैं तुम्हारे साथ हूँ। अल्फाज नहीं, एक मंत्र था जिसने उसकी बुझी हुई रूह में हिम्मत की चिंगारी रोशन कर दी थी। उस दिन पहली बार अरुजा ने किसी के एतमाद को अपनी सबसे बड़ी ताकत के तौर पर महसूस किया था। वो अकेली थी, माँ उसकी पैदाइश के चंद साल बाद ही चल बसी थी। मिस्टर जमाल ने अपनी पूरी ज़िंदगी अरुजा के नाम कर दी थी। वो दोनों एक दूसरे का सब कुछ थे और आज वो अकेली रह गई थी। नहीं, आज से वो अकेली नहीं थी, रईस औरंगज़ेब उसके साथ था। इस वाक़े के बाद उसने आर्ट और रंगों की दुनिया को हमेशा के लिए खैराबाद कह दिया। रईस की रहनुमाई में उसने टेक्नोलॉजी की तालीम हासिल की। उसने साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल फोरेंसिक और इंफॉर्मेशनल प्रोजेक्ट्स में ऐसी महारत हासिल की कि बड़े बड़े माहिरीन दंग रह जाए। वो दिन रात एक करके डिजिटल किलो को फतेह करने लगी थी। उसका मकसद सिर्फ एक था, अपने बाप पर लगे झूठे इल्ज़ाम के डिजिटल फुटप्रिंट्स को खोजना। रईस ने उसे तमाम वसाइल फराहम किए, दुनिया की बेहतरीन सिस्टम, कानूनी टीम और हर तरह का तहफ़्फ़ुज़। अरुजा ने महीनों तक एंकर पेडेलर्स को डिकोड किया, शेल कंपनियों को पेचीदा जाल को बेनकाब किया और आखिरकार डिजिटल रास्ते को ढूंढ निकाला जो असल मुजरिमों तक जाता था। उसने नाकाबिले तरदीद डिजिटल सबूत इकट्ठे किए, जिससे साबित हुआ कि फिरोज जमाल को एक हरीफ बैंकिंग ग्रुप ने मुंजिम साजिश के तहत फंसाया था। उन्हीं सबूतों की बुनियाद पर केस दोबारा खोला गया और फिरोज जमाल बाइज्जत बरी हुए। उस दिन के बाद अरुजा सिर्फ अरुजा नहीं रही, वो रईस औरंगज़ेब का दायां बाजू बन गई थी, उसका हथियार, उसकी ढाल। वो खुद को कभी मुलाजिम नहीं समझती थी, वो खुद को रईस ग्रुप का एक अटूट हिस्सा मानती थी। रईस के साथ उसका रिश्ता इतना हकीकी और मजबूत था कि जितना रईस का अपनी बहन जरताज के साथ भी नहीं था। वक्त गुजरता गया और वो दोनों एक साथ खड़े रहे। उनमें जितना प्रोफेशनलिज्म था, इतना ही अपनापन। वो गुस्से में रईस का नाक फोड़ सकती थी, वो उसे अपने बाप की धमकियाँ लगाती थी क्योंकि उसका बाप उससे ज़्यादा रईस को अहमियत देता था। और आज अपनी ज़िंदगी में पहली बार उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे सब कुछ उसके हाथों से रेत की तरह फिसल रहा हो। अरुजा, मिस्टर जमाल की आवाज़ ने उसे एक झटके से माजी से हाल में वापसी लापटका था। वो चौंक कर पल के झपकने लगी थी। वो अब उसके चेहरे को एक सख्त मगर फिक्रमंद निगाह से देख रहे थे। मुझे सच बताओ, तुम्हारे दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? उनका लहजा नरम होने के बावजूद खाली नहीं था, उसमें एक जाना पहचाना खौफ था। वो जानते थे कि अगर अरुजा ने दिल में कोई फैसला कर लिया तो उसे दुनिया की कोई ताकत बदल नहीं सकती। चाय का कप अरुजा के हाथ में हल्का सा लर्जा। वो एक तवील ठहरी हुई सांस लेकर सोफे की पुष्ट से टेक लगाकर सीधी हो बैठी, आहिस्तेगी से पलकें उठाई और सामने बैठे अपने बाप की आंखों में देखा। मैं नहीं जानती बाबा, वो बहुत धीमी आवाज़ में बोली, जैसे वो खुद अपने अंदर की कशमकश से ना वाकिफ हो। एक लम्हे के लिए दोनों के दरमियान गहरी खामोशी छा गई। मिस्टर जमाल ने अपनी उंगलियां आपस में पेवस्त की और फिर एक उदास सी सख्ती के साथ बोले, तुम रईस को धोखा देने का तो नहीं सोच रही? ये जुमला एक आहनी हथौड़े की तरह था। जैसे ही ये अल्फाज फिजा में गूंजे, अरुजा के दिल की दीवारों पर जलजला सा बर्पा हो गया। वो चंद लम्हों तक साकित रही, जैसे उस सवाल के वजन ने उसके पूरे वजूद को मुंजमद कर दिया हो। फिर बहुत आहिस्तेगी से उसने अपने हाथों में पकड़ा हुआ कप मेज पर रखा, एक गहरी सांस अंदर खींची और फिर एक मजबूत अटल लहजे में अपनी आंखों में फौलादी यकीन के साथ बोली, अरुजा मर सकती है लेकिन रईस औरंगज़ेब को धोखा नहीं दे सकती।
اس की आवाज़ धीमी थी मगर उसमें वही ताकत और वही गूंज थी जो उसने बरसों पहले रईस की आंखों से उधार ली थी। वो ये कहकर उठ खड़ी हुई। उसके कदमों में न कोई लर्जिश थी न कोई कमजोरी। उसने एक आखिरी बार अपने बाप को देखा। उनके चेहरे पर अब एक अजीब सा सुकून और बेबसी आपस में गड़बड़ हो गए थे, जैसे वो अपनी बेटी की सर पर फख्र भी कर रहे हों और उसकी आने वाली तकलीफ को महसूस भी। अरूजा आहिस्तेगी से लॉन से बाहर निकल गई। पीछे सोफे पर मिस्टर जमाल तन्हा रह गए। कमरे की धीमी रोशनी ने अब उनके चेहरे पर एक थकी हुई नमी बिखेर दी थी। उन्होंने आहिस्ता से आंखें मूंद ली और खुद से बेआवाज़ सरगोशी की। खुदा करे तुम्हारा यही हौसला तुम सबको बचा दे मेरी बच्ची। रईस होटल्स की 5वीं एनिवर्सरी का जश्न अपने उरूज पर था। क्रिस्टल के झाड़ फनूसों से छनती दूधिया रोशनी हज़ारों मेहमानों की कीमती मलबूसात और जेवरात पर पड़कर मुनक्स हो रही थी। हवा में महंगे परफ्यूम, ताज़ा फूलों और ज़ेरे लब गुफ्तगू की मिली जुली महक थी। हर तरफ मुस्कुराहटें थीं, मुबारकबादें थीं, मगर ये सब एक चमकदार दिखावा था, एक फॉर्मेलिटी जो बिजनेस की दुनिया की अहम कड़ी थी। अरूजा सिया रंग के एक नफीस पैंट सूट में मलबूस थी, अपने फ्राइज में जुटी हुई थी। उसकी आंखें एक तरबियत याफ्ता अकाब की तरह पूरे हॉल का जायजा ले रही थी, मगर उसकी रूह इस महफिल से मीलों दूर थी। उसने अपने और रईस औरंगजेब के बीच एक सर्द नादीदा शीशे की दीवार खड़ी कर ली थी। वो उसके अहकामात पर अमल करती, उसके इशारों को समझती, मगर उनके दरमियान वो पुराना बेतकल्लुफ़ ताल्लुक अब बर्फ़ की तरह जम चुका था। जाने कितने दिन गुजर गए थे, उनकी ठीक से बात हुई भी नहीं थी। इसी हजूम में वली भी मौजूद था, जिसे मुराद ने खास तौर पर मदऊ किया था, और ये दावत रईस के हुक्म पर दी गई थी। अरूजा न उसकी सुनती थी और न अपनी सुनाती थी। उसने वली के साथ साथ रईस को देखना भी छोड़ दिया था। काम करना मजबूरी थी, मगर वली के 1000 बार उस मसले पर बात करने की दरख्वास्त उसने मुस्तरद कर दी। वो खुद बेतरह फंस गया था। रईस की इस तकरीब का असल मकसद जाहिर से कुछ और था। वो कुछ आजमाना चाहता था। उसके अंदर कई दिनों से एक शक, एक कांटा खटक रहा था जो अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। वो आज उस शक की तस्दीक या तरदीद चाहता था। तकरीब के बीच में मीसम खामोशी से अरूजा, मुराद और फिर वली के पास आया। रईस ने पेंट हाउस फ्लोर पर बुलाया है। ये जुमला किसी हुक्म से ज़्यादा एक समन था। लिफ्ट में मुकम्मल खामोशी थी। हर कोई जानता था कि ये कोई आम मुलाकात नहीं है। जब पेंट हाउस का दरवाज़ा खुला तो अंदर का मंजर बाहर की चकाचौंध के बिल्कुल बरक्स था। वसी और इस लाउंज में मध्यम रोशनी थी, फर्नीचर कम और जदीद था, और माहौल में एक अजीब सी वहशत और ठहराव था। बज़ाहिर ये अपनों की मखसूस मीटिंग थी, मगर सब जानते थे कि अदालत सज चुकी थी। वो एक बड़ी सी खिड़की के सामने खड़ा था, जिससे नीचे शहर की रोशनियां जगमगा रही थी। उसने पलटकर उन चारों को देखा। उसकी नज़रें एक एक करके चेहरे पर ठहरी और फिर उसने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज़ पुरसकून थी, मगर उस सुकून के पीछे तूफान का शोर था। मैंने सोचा क्यों ना सब मिलकर बैठें। मुराद ने अस्बात में सर हिलाया। साथ कुछ ज़रूरी बात भी हो जाएगी। उसके अल्फाज चुने हुए थे, जबकि बाकी चारों खामोश खड़े थे। फिर उसने मेज़ पर रखी अपनी सॉफ्ट ड्रिंक उठाई, उन सबको भी इशारा किया, मगर कोई अपनी जगह से नहीं हिला। वफादारी क्या होती है? एक घूंट भरते उसने सवाल फिजा में उछाला, मगर खामोशी यूं ही कायम रही। वफादारी एक बुनियाद होती है जिस पर सल्तनतें खड़ी की जाती हैं। जब बुनियाद में दीमक लग जाए तो ऊंची से ऊंची इमारत भी ज़मीं बोझ हो जाती है। वो धीरे धीरे चलता हुआ उनके करीब आया। उसकी आंखें मुराद के परेशान चेहरे से होती हुई वली के सपाट चेहरे पर जम गई। कुछ अरसे से मुझे अपनी बुनियाद में दीमक लगने का एहसास हो रहा है। वो अरूजा के सामने खड़ा था। जब दिल बदल जाए तो अमल बदलने में देर नहीं लगती। उसका लहजा सर्द से सर्दतर हो गया। कमरे में दर्जा हरारत जैसे नुक्ता अंजामाद से भी नीचे गिर गया था। सबसे पहले धोखा मुझे मेरे वारिस ने दिया। उसका इशारा वली की तरफ था। आवाज़ एकदम बुलंद हुई, जैसे बादल गरजे हों। तुमने इस एतमाद को तोड़ा जो मैंने तुम पर किया था। वली पर एक नज़र डालते फिर वो तेजी से अरूजा की तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। लेकिन अरूजा मुझे कभी धोखा नहीं देगी। ये सुनकर अरूजा के बेतासुर चेहरे पर एक लम्हे के लिए साया सा लहराया और गुजर गया। है ना अरूजा? वो चलता हुआ उसके बिल्कुल सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आंखें अरूजा के झुके हुए चेहरे में कुछ तलाश कर रही थी। अरूजा वो करती है जो मैं कहता हूँ। वो मेरी ताकत है, मेरी ढाल। अरूजा की नज़रें फर्श में गड़ी रही थी। उसका दिल पसलियों के कफ में किसी जख्मी परिंदे की तरह फड़फड़ा रहा था।
फिर वो पलटा और मेज पर रखी चमकती हुई स्याह पिस्तौल उठा ली। उसने अपना हाथ अरुजा के सामने किया। उसकी हथेली पर वो मौत का खिलौना पड़ा था। मैं चाहता हूँ रोज तुम वली को मार डालो। जैसे किसी ने वक्त का बटन दबा दिया हो, हर शय साकित हो गई। ये सुनते ही अरुजा ने झटके से सर उठाया। उसकी आंखों में नाकाबिले यकीन हैरत का तूफान था। कर लोगी ना ये मेरे लिए? उसने अरुजा की आंखों में झांकते हुए पूछा। एक लम्हे के लिए अरुजा की आंखों में कुछ परछाई उभरी, मगर फिर अगले ही पल वो परछाई एक फौलादी अज़्म में बदल गई। उसने रईस के हाथ से गन उठा ली। वली अपनी जगह बुत की तरह साकित खड़ा था। उसके चेहरे पर सर्द मेहरी थी, जैसे उसे अपनी किस्मत का फैसला कबूल हो। अरुजा के कोर्ट शूट्स की टिक 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 की आवाज़ खामोश हॉल में गूंजने लगी थी। हर कदम मौत की घड़ी के सुई की तरह था। माहौल इतना सर्द हो चुका था कि सांस लेना भी दुश्वार था। अगले ही पल वो वली के सामने खड़ी थी। उसने हाथ उठाया और पिस्तौल की सर्द धात उसकी पेशानी पर जमा दी। अरुजा? मुराद की घुटी घुटी सी आवाज़ उभरी। उसकी आंखों में खालिश दहशत थी, जबकि रईस आराम से एक कुर्सी खींचकर उस पर बैठ गया था, जैसे वो कोई सनसनीखेज फिल्म का आखिरी मंजर देख रहा हो। वली साकित था। अरुजा की नजरें पल भर को उन कत्थई आंखों से टकराई जिनमें कभी उसने अपना अक्स देखना चाहा था। हाथ छुड़ाकर जाने वालों के ख्वाब नहीं देखते, वरना रूह जख्मी, दिल मुर्दा और आंखें अंधी हो जाती हैं। उसके साथ यही हुआ था। सब कुछ सियाह हो गया था। पिस्तौल के रेडी होने की बेकाने की आवाज़ ने सन्नाटे को चीरा। वली न अपनी जगह से हिला और न उसने नजरें झुकाई। अरुजा ने जब से होठ भींच लिए। उसकी उंगली ट्रिगर पर थी। रईस ने अपनी थोड़ी मुट्ठी पर जमाई। उन्हें देख रहा था। एक पल को उसका दिल चाहा कि वो वली का भेजा उड़ा दे, उस धोखे की असियत का खात्मा कर दे, मगर ठप, पिस्तौल उसके कांपते हाथ से छूटकर मार्बल के फर्श पर गिर गया। चंद पल की मौत जैसी खामोशी और फिर रईस का कहका गूंजा। ये हंसी नहीं थी, ये बेसाख्ता नहीं थी, ये एक जख्मी शेर की दहाड़ थी जो अजियत में बदल गई थी। अरुजा का सर शर्मिंदगी और शिकस्त से झुक गया। वली के चेहरे पर असियत के गहरे तासुरा उभरे थे, जैसे वो गोली लगने से भी बड़ी तकलीफ से गुजरा हो। वो अब सर झुकाए खड़ी थी, जबकि रईस की असियत भरी हंसी कमरे की दीवारों से टकरा रही थी। मुराद की आंखें खौफ से फटी पड़ी रही थी। मीसम सांस रोके दरवाजे के करीब खड़ा था। सब सदमे में थे और वो शख्स हंस रहा था जिसका सब कुछ लुट गया था। फिर उसकी हंसी एकदम रुकी। उसने अरुजा और वली को देखा। उसके सीने में एक शदीद दर्द की लहर उठी और वो उठकर खड़ा हुआ। तुम सब पर अंधा भरोसा किया था मैंने। तुम सब ने मिलकर मुझे अंधा कर दिया। उसकी आवाज़ में दर्द ही दर्द था। उसके दो अपने मजबूत प्यादे हुकूमत पर अपनी मोहब्बत चुन चुके थे। उस बादशाह की तकलीफ कौन समझ पाता? अरुजा खामोशी से वली के सामने से हट गई। रईस चलता हुआ उसके सामने आन खड़ा हुआ। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, सिर्फ असियत था। मोहब्बत क्यों अरुजा, मोहब्बत क्यों? उसने सरगोशीनुमा सवाल किया। सब कुछ था उसके पास, इज्जत, ताकत और उसका एतमाद। फिर मोहब्बत क्यों? उसने मोहब्बत क्यों चुनी? अरुजा ने वली पर अपनी मोहब्बत को चुनकर रईस को शिकस्त दे दी थी। इस वक्त रईस की तकलीफ से कौन वाकिफ था? मगर अरुजा, उसकी अपनी तकलीफ का क्या? वो चुप खड़ी थी, नजरें झुकाए। दिल फटने को था, मगर वो कुछ न बोली। उसके पास रईस की किसी बात का कोई जवाब नहीं था। फिर बिना कुछ कहे उसने एक फैसला किया। उसने अपने गले से अपना सिक्योरिटी कार्ड उतारा और आगे बढ़ाकर मेज पर रख दिया। अपनी पैंट के बेल्ट से अपनी जाती पिस्तौल निकालकर उसके साथ रखी। अब वो इस काबिल नहीं रही थी कि वो रईस औरंगजेब की सल्तनत में रहती। वो खुद को बेदखल कर रही थी। जबड़े बीचे आंसुओं को हलक में उतारे वो खामोशी से सब कर रही थी। अपनी कलाई की जदीद डिजिटल घड़ी उतारी। रईस ग्रुप से जुड़ी हर चीज़ अब मेज पर रखी थी। रईस जबान दांतों तले दबाए साकित खड़ा उसे ये सब करते देख रहा था। बोला कुछ भी नहीं। फिर वो चलते हुए रईस के सामने आई। उसकी आंखों में देखा। मुझे अफसोस रहेगा। ये 4 अल्फाज कहने के बाद वो तेजी से पलटी। दरवाजे के करीब मीसम खड़ा था, जो तकलीफदे नज़रों से ये सारा मंजर देख रहा था। वो एक पल को रुकी। उसने मीसम की आंखों में देखा। कई अनकहे अहद, कई खामोश वादे और नज़रों के तबादले में अदा हुए, और फिर वो बाहर निकल गई। पीछे कमरे में एक गहरा नाकाबिले बयान सन्नाटा छा गया, जैसे किसी ने अचानक पूरी कायनात से आवाज़ छीन ली हो। रात बहुत आगे निकल चुकी थी, लेकिन तरन्नुम हाउस के एक गोशे में अब भी रोशनी जल रही थी। फजर खिड़की के पास खड़ी बाहर सर्द रात को देख रही थी। चांद धीमी रोशनी के साथ दरख्तों के चोटियों पर टिका हुआ था। हवा की थपथपाहट खिड़की के शीशे को छूकर गुजर रही थी, मगर उसके अंदर सुकून था। ऐसा सुकून जो सिर्फ अपने का इंतजार करते हुए दिल में होता है। हल्के नीले रंग की चादर ओढ़े वो मुसलसल दरवाजे की तरफ नजर उठाती
फिर खुद ही नजरें झुका लेती। पीछे मेज पर लैपटॉप खुला था, काफ़ी स्केचेस बिखरे पड़े थे। काम से दिल उचाट हो चुका था। फिर अचानक लॉन्च की सीढ़ियों से कदमों की छाप उभरी। उसने पलट कर देखा। वो आहिस्ता आहिस्ता अंदर दाखिल हुआ, कोट उतार कर बाजू पर लिटाया, और जैसे ही उसने निगाह फजर पर पड़ी, चंद लम्हों को रुक गया। वो उसके सामने आई, नरमी से उसके चेहरे को देखा। सब ठीक है? वली ने एक सांस लिया, खुद को संभाला और हल्की सी मुस्कुराहट होठों पर सजा दी। हाँ, सब ठीक है। उसकी हल्की सी थकन फौरन उस जवाब के पीछे छुप गई। फजर ने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर आहिस्ता से पूछा, तकरीब कैसी रही? वो मुस्कुराया, वो खास मुस्कुराहट जो सिर्फ उसके लिए थी। बहुत अच्छी। पलकें झुकी हुई थी मगर आंखों में नरम रोशनी थी। बिग ने कुछ कहा तो नहीं? उसके सवाल में फिक्रमंदी छुपी थी। जाने क्यों उसकी छठी हिस्स किसी खतरे का अलार्म बजा रही थी, मगर समझ नहीं आ रहा था ये खतरा क्या था। उसने एक पल को फजर को देखा, फिर सर हिलाया। नहीं, एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। वो चंद लम्हों तक खामोश खड़ा रहा। फिर लॉन्च की दी की रोशनी उन दोनों के चेहरों पर नरम सा साया फैला रही थी। खाना लगाऊं? बानो सोच चुकी थी, उसे खुद ही करना था। नहीं, मैंने खा लिया था। उसने नहीं खाया था, बस ऐसे ही कह दिया था। ऐसे क्यों लग रहा है? तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? उसकी सिकुड़ी हुई भवें देखकर इस बार वो हंस दिया। मैं कुछ नहीं छुपा रहा, अलबत्ता आज तुम ऑफिस में काफ़ी हाइपर थी। बताओ क्या मसला हुआ है? वो फौरन बात बदल गया। मेरा तो चलता रहता है, 100 तरह के मसाइल हैं। वो वापस सोफे की जानिब बढ़ी, लेकिन वो उस सरत से उसका हाथ खींच चुका था। बाकी मसले तो तुम हल कर लेती हो। आओ, मैं तुम्हारे दिल का मसला हल करता हूँ। उसने धीरे से झुकते हुए फजर के गाल छुआ। उसके लबों पर धीमी सी मुस्कुराहट उभरी। ये तुम्हारा गुरूर है या मेरा नसीब? वो अब हेजल आंखों में मोहब्बत का समंदर लिए उसे देख रही थी। वली ने आहिस्तेगी से उसकी थोड़ी ऊपर की। दोनों? उस एक लफ्ज़ ने फिजा के अंदर एक दिलकश खामोशी भर दी थी। वो अब उसका हाथ थामकर सोफे की तरफ बढ़ चुका था। चलो बैठो, मुझे तुमसे सब सुनना है। क्या? उसने हैरत से पूछा। तुम सारा दिन किसके बारे में सोचती हो? गुस्सा क्यों आया? शामत किसकी आई? सब बताओ मुझे। वो गहरी सांस लेकर रह गई। ये उसका रोज का काम था। तुम थक गए हो, आराम कर लो। उसने फजर की बात पर नफी में सर हिलाया। नहीं, सारा दिन शोर और बातें सुनी, अब मुझे सिर्फ वो सुनना है जो तुम्हारे दिल में है। वो वाकई उसके दिल का मसला हल करने बैठ चुका था। फजल ने अपनी पलकें झुकाई और फिर मध्यम आवाज़ में बोलना शुरू किया। अल्फाज आहिस्ता आहिस्ता हवा में बिखरने लगे, मोहब्बत की महक के साथ। वो सब सुनाती रही, वो सब सुनता रहा, और वक्त बगैर आवाज़ के उनके दरमियान बैठा उन सब लम्हों को महफूज करता रहा। वहाँ सिर्फ एक नरम सी रोशनी थी, दो धड़कते दिल और हम जैसा सुकून। सरे शाम धुंध के पहले झोंके ने शहर के आसमान पर एक मासूम सी परत चढ़ा दी थी। गहरे नीले आसमान में कहीं कहीं सितारों के नन्हे जर्रे जगमगा रहे थे, लेकिन उनके बीच एक अजीब सी बेचैनी सांस ले रही थी। वो गाड़ी में बैठे फलक की तरफ डिनर के लिए जा रहे थे। डैशबोर्ड पर मौजूद छोटा सा फानुस हौले हौले हिल रहा था। फजर ने अपनी शॉल जरा सा खींचकर थोड़ी के नीचे दुरुस्त की और मुस्कुराकर वली की तरफ देखा। अजीब मौसम है ना? धीरे से कहा। वली ने एक नज़र सामने सड़क पर डाली, फिर उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। ऐसा मौसम हमेशा कुछ कहने से पहले आता है और कुछ कहने के बाद चला जाता है। फजर ने हंसते हुए सर नफी में हिलाया। तुमने भी फलसफाना बातें सीख ली? आज ज़्यादा दिल कर रहा है। चूँकि मैडम सुबह से नाराज़ थी, तो अभी मौका है कि मैं अपनी सब बातें आसानी से कह दूँ। वो ज़रा सा उसकी जानिब झुका, वरना कब फिर नाराज़ हो जाए पता नहीं। वो हंस दी। नाराज़ नहीं हूँ, बस थकी हुई थी। गाड़ी धुंध से ढकी हुई उस सड़क पर आगे बढ़ रही थी, जहाँ रोशनियों की कतारें धुंध में तहलील होकर ऐसा लग रही थी जैसे किसी ने शीशे पर उंगली से धुंधली लकीरें बना दी हो। उसने खिड़की की तरफ देखा। सर्द धुंध के अंदर गुलाबी रंग की दुकानों के बोर्ड और मुख्तलिफ दुकानों की रोशनियाँ मध्यम सा अक्स बिखेर रही थीं। एक बात कहूँ? वो अचानक बोला। वो उसकी तरफ मुड़ी। जब भी तुम ऐसी खामोश होती हो ना, मुझे लगता है जैसे तुम्हारे दिल में बहुत सी बातें कैद हो गई हैं, और अगर मैंने उन्हें ना सुना तो शायद वो कभी आज़ाद ही ना हो पाए। उसकी बात पर फजर के होठों पर नरम सी मुस्कुराहट उभरी। उसने आहिस्ता से वली का हाथ पकड़ लिया। तुम शायद इसलिए मेरे नसीब में आए हो ताकि मेरा हर लफ्ज़ किसी के दिल तक पहुँच सके। वली ने कुछ बोलने के बजाय सर अस्बात में हिलाते हुए उसका हाथ थामकर हल्का से दबाया। उस एक लम्स में बेशुमार बेनाम वादे थे। गाड़ी अचानक सड़क के एक किनारे पर आकर आहिस्ता से हुई थी। सामने एक छोटी सी फ्लावर शॉप थी। शॉप के बाहर नन्हे सफ़ेद लाइट्स जुगनों की तरह जगमगा रही थी और कांच के शेल्फ पर दर्जनों फूलों के गुलदस्ते सजे हुए थे। उसने एक नज़र दुकान पर डाली, फिर मुस्कुराकर फजर की तरफ देखा। एक मिनट,
फजर के चेहरे पर हैरत के तासुरात उभरे। अभी? ये वो 1 मिनट, आज मुझे ज़रूरी लेना है, उसने नर्म लहजे में कहा और गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उतर गया। वो उसके जाते हुए कदमों को देखती रही। धुंध की हल्की सी परत उसके अतराफ में नाच रही थी। वो दुकान के अंदर गया तो कांच के दरवाजे के पीछे उसका अक्स कुछ लम्हों के लिए मध्यम रोशनी में घुल गया। फजर ने खिड़की से गर्दन मोड़कर बाहर देखा। दुकान के शीशे के दीवार के अंदर वली फूलों के बीच खड़ा कुछ मुंतखब कर रहा था। एक लम्हे के लिए उसके होठों पर दिलकश सी मुस्कुराहट फैली। उस समय वो बिल्कुल किसी रोमानवी मंजर का कोई हीरो मालूम हो रहा था जो अपने महबूब के लिए फूल चुनने में मसरूफ हो। घड़ी की सुइयां सुस्त रवि से आगे बढ़ रही थी। उसने सर्द पड़ते अपने हाथों को आपस में जोड़ा और अपनी सांस के धुन से शीशा धुंधला करके एक छोटा सा दिल बनाया। वो हंस दी। यूँ लगा जैसे मोहब्बत उसके लम्हे को हथेली में समेट आई हो। इसी पल शॉप के अंदर वली ने सफ़ेद गुलाबों का एक नफीस सा गुलदस्ता चुना और काउंटर पर पैसे रखकर बाहर की सिमत बढ़ा। जैसे ही वो दरवाजे से निकला उसका फ़ोन बज उठा। उसने थोड़ा रुककर जेब से फ़ोन निकाला। नंबर अनजान था। उसके पेशानी की हल्की सी शिकने फैली। वो चौकन्ना मगर फ़ोन कान से लगाया। हेलो हेलो बेबी बॉय। वो आवाज़ वो सांप की तरह सरसराती, गहरी, घनी और जानलेवा। उसके कदम पल भर को ज़मीन में धंस गए। चेहरे का रंग बदल गया। एक तारीख साया आकर गुजर गया। आंखों में हैरत और नागवारी की एक झलक उभरी। उसने एक नज़र गाड़ी की तरफ डाली जहाँ फजर इत्मीनान से उसे देख रही थी। फिर उसने नज़रें वापस सड़क की खामोश गोसे पर जम गई। फ़ोन की दूसरी तरफ वही आवाज़ सांस को थपक रही थी। मैंने कहा था ना वापस चले जाओ, उसे छोड़ दो, लेकिन नहीं। अब मैं तुम पर हंसूं या तुम पर अफसोस करूं? उसके लब सख्ती से भिज गए। और तुम्हें लगता है कि मैं उसे छोड़कर चला जाऊंगा? वो दांत किचकिचाते हुए बोला। ये तुम्हारी कहानी नहीं। तुम्हें इसमें नहीं होना चाहिए। तुम्हें आना ही नहीं चाहिए था। इसलिए मैं ख़त्म करने आया हूँ। एक नज़र फजर पर डाली। वो अब फ़ोन पर मसरूफ़ थी। दूसरी तरफ एक धीमा जख्मी कहका उभरा। जो मलका का हुक्म डालता है वो मौत के मुंह में जाता है। मैं मौत से नहीं डरता। उसका लहजा हतमी था। अच्छा, लंबा खींचा गया। अचानक फजर की गर्दन एक अजीब से एहसास से उठी। उसकी छठी हिस्स ने अजीब सा अलार्म बजाया। वो चौंकी। उसने शीशे के पार देखा तो वो अब गाड़ी से कुछ कदम दूर खड़ा फ़ोन पर मसरूफ़ था और उसके पीछे से एक तेज़ रफ्तार ट्रक धुंध चीरता हुआ बर्फ रफ्तारी से सीधा उसके सिमत बढ़ रहा था। वली! उसकी चीख उसके गले में ही फंस गई। आवाज़ गाड़ी के अंदर ही टूट गई। वो झटके से दरवाज़ा खोलते हुए बाहर निकली। पीछे देखो। फ़ोन से उभरती मनार की वही गहरी सरगोशी उसके कानों से टकराई। उसका दिल पल भर को साकित हुआ। उसने एक पल के लिए पीछे मुड़कर देखा। ट्रक उसके बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। उसने पूरी बर्फ रफ्तारी से पीछे छलांग लगाई। हवा का जोर ऐसी शिद्दत से उसके चेहरे पर पड़ा कि फूलों का गुलदस्ता उसके हाथ से छूटकर ज़मीन पर गिर गया। लेकिन कड़ाक की आवाज़ ट्रक का बायां हिस्सा उसके कंधे को टक्कर देकर गुजर गया था। वो दूर जाकर फुटपाथ की दहलीज से टकरा कर गिरा था। उसके जिस्म ने ज़मीन पर हिचकोला खाया। फूल बिखरकर फुटपाथ पर फैल गए। फजर के कदम जैसे शल हो गए। उसकी आंखें फट गईं। दिल की धड़कन जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ ली। वक्त जैसे किसी ने रोक दिया हो। मैदान जंग के इस एक पल में सब कुछ खामोश, लेकिन अंदर तनफ्फुस चीख रहा था। वो झटके से आगे बढ़ी। सर्द हवा उसके गालों पर खंजर की तरह चुभ रही थी। वो उसकी जानिब भाग रही थी। कदमों से बेसाख्ता आवाज़ें उभरने लगी थी जैसे पत्थर पर कोई शीशा टूट रहा हो। वली! उसकी चीख फिजा को हिला गई। वो नीम बेहोश हालत में ज़मीन पर पड़ा था। उसकी सफ़ेद कमीज पर सुर्ख धब्बा फैलना शुरू हो चुका था। होठों के किनारों पर खून की बारीक धार नमूदार हुई। उसकी नज़रें धुंध में तहलील होती रोशनियों को फटी फटी सी तक रही थी। वली, आंखें खोलो। वो उसके करीब घुटनों के बल गिरी हुई थी। उसके हाथों ने वली के कंधों को थामा। खौफ से उसका पूरा वजूद कांप रहा था। वली ने बमुश्किल पलकें उठाई। वो होश में रहने की कोशिश कर रहा था। उसकी निगाह में दर्द नहीं था, सिर्फ बेबसी थी। फजर! उसने लब हिलाए, लेकिन आवाज़ जैसे गले के अंदर कहीं दफन हो गई। नहीं, बात मत करो, मैं अभी। उसकी सांसें बेकाबू हो चुकी थी। चेहरा खौफ से सफ़ेद पड़ गया था। किसी को फ़ोन करना होगा, एम्बुलेंस। उसका अपना फ़ोन गाड़ी में गिर गया था। या अल्लाह, कोई है! वो हलक के बल चिल्लाई। करीब की दुकानों से लोग भागकर बाहर आने लगे थे। वली का सर उसकी गोद में था। सुर्ख माया फैलता जा रहा था। ट्रक कब का धुंध में गायब हो चुका था। दूर कहीं मनार की वो शरीर सी सरसराहती हंसी धुंध में तहलील हो रही थी। फजल ने आंसुओं में घिरी नज़रों से वली की तरफ देखा। उसकी उंगलियां वली के बालों में फिसलती हुई उसके गालों तक आईं। कुछ नहीं होगा, तुम सुन रहे हो? उसने लरसती हुई सांस से कहा था। वली की आंखों में हल्का सा अक्स उभरा, जैसे वो मुस्कुराना चाह रहा हो।
تم نے کہا تھا تم میرے دل کا مسئلہ حل کرو گے، ابھی تو بہت سے مسئلے باقی ہیں۔ ولی نے دھیرے سے آنکھیں بند کر دی۔ نہیں، آنکھیں مت بند کرو ولی، ولی نہیں! وہ تڑپ رہی تھی، بن پانی کی مچھلی کی طرح اس کی آواز ٹوٹتی جا رہی تھی۔ وہ اپنے ہونٹ کاٹ کر ضبط کے بندھن سنبھال رہی تھی، لیکن آنسو اس کے گالوں سے بہہ گئے تھے۔ کوئی ڈاکٹر کو بلاؤ! شور پھیل چکا تھا، کچھ لوگ بھاگتے ہوئے آئے، کسی نے ایمبولینس کا کال کی۔ سڑک کے درمیان میں فضر کی ہچکیوں اور ولی کے مدھم سانسوں کی بیچ وقت تھم گیا تھا۔ ولی کی پلکوں نے دوبارہ ہلکا سا ارتعاش محسوس کیا اور اس نے بہت مشکل سے اپنی نگاہ فضر پر مرکوز کی۔ اس کی آنکھوں میں اداسی نہیں، ایک خاصی تسکین تھی، جیسے وہ اس بات پر مطمئن ہو کہ اگر یہ زندگی کے آخری لمحات تھا تو وہ اسے دیکھ رہا ہے جس سے وہ بے پناہ محبت کرتا تھا۔ وہ اس کے چہرے کو تھامے خود میں سمیٹنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے لرزتے لب ولی کے سماعت میں سرگوشی کر رہے تھے۔ تم نے کہا تھا تم کبھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑو گے، کبھی نہیں۔ ولی کی سانس میں ایک پھڑپھڑاہٹ ابھری اور پھر نم آنکھوں سے اس نے فضر کا چہرہ دیکھا اور ہولے سے سر انکار میں ہلایا، جیسے کہہ رہا ہو میں نہیں چھوڑوں گا۔ وہی لمحہ تھا جب ایمبولینس کا سائرن بہت دور دھند میں کہیں بجا، لیکن اس ایک لمحے کے بیچ فضر کی آنکھوں کے سامنے ہر شے سفید ہو گئی، جیسے دل کے اندر کسی نے برف کی ایک سل رکھ دی ہو۔ وہ ہوش کھو چکا تھا اور فضر کی ایک خوفناک چیخ ابھری، دل دہلا دینے والی چیخ، وہ چیخ جس نے سڑک کی دھند کو رون ڈالا، قریبی درختوں پر بیٹھے پرندوں کو چونکا کر اڑا دیا اور شاید کسی دور کھڑی منار کو لمحے بھر کو خاموش کر دیا۔ اور پھر ہاتھوں میں اس کی دھڑکن لیے وہ دھند میں گم سناٹے کے اندر بیٹھی رہی، ٹوٹے پھولوں کی بیچ بکھرے دل کے ساتھ، اور خاموش آسمان اس صدمے کا گواہ بنتا چلا گیا۔ ایمبولینس کے سائرن نے ہاسپٹل کے سناٹے کو چیر کر رکھ دیا۔ اس کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے تھے، شول کے کناروں پر سرخی جم کر سیاہی میں بدل چکی تھی۔ آئی سی یو کے شیشوں کے پار ڈاکٹرز بھاگ دوڑ آیا تھی، بار بار دروازہ کھلتا بند ہوتا، مشینوں کی تیز بیپ بیپ اس کی سماعتوں کو زخمی کر رہی تھی۔ وہ دروازے کے پاس زمین پر بیٹھی تھی، گہری نیلے لباس پر خون کے داغ ایسے لگ رہے تھے جیسے کسی نے پھولوں کو مسل کر ان پر پھینک دیا ہو۔ سردی اتنی تیز تھی کہ سانسیں برف کی بھاپ بن کر نکل رہی تھیں، لیکن اس کے جسم کو جیسے احساس ہی نہ تھا۔ وہ پتھر کے بت کی طرح بیٹھی بس اپنے کان آئی سی یو کی طرف لگائے ہوئے تھی، شاید کوئی آواز، کوئی امید، کوئی دھڑکن سن سکے۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، اس کے ہونٹوں نے بے آواز الفاظ ادا کیے، انگلیاں کپ کپا رہی تھیں، دل کے اندر ندامت اور اذیت کا ایک طوفان تھا۔ میں نے اسے نگل لیا۔ وہ سر گھٹنوں میں دیے سسکتی رہی۔ آج پھر وہ اپنے ملون ہونے پر تڑپ رہی تھی۔ وہ ہر اس چیز کو کھا جاتی تھی جس سے وہ محبت کرتی تھی۔ وقت گزرتا رہا اور پھر قدموں کی چاپیں ایک ایک کر کے سنائی دینے لگی۔ سب سے پہلے رئیس ہال کی لمبی راہداری سے گزرتا ہوا آیا۔ اس کے قدم ہمیشہ کی طرح مضبوط نہیں تھے، ان میں ایک عجیب سی بوجھل خاموشی تھی، جیسے ہر سانس کے ساتھ کوئی بڑی چیز ٹوٹ رہی ہو۔ جب اس نے فضر کو زمین پر یوں خون آلود حالت میں دیکھا، اس کی آنکھوں کی پتھریلی خاموشی میں ایک درد بھرا اضطراب ابھرا۔ وہ چند لمحے دور کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ سیاہ کوٹ کے اندر اس کا سینہ تیزی سے اٹھ رہا تھا، جیسے وہ اپنی پوری طاقت سے خود کو ٹوٹنے سے روک رہا ہو۔ آخر وہ آہستہ قدموں سے آگے بڑھا اور اس کے سامنے آ کر رکا۔ فضر! بس ایک لفظ، مگر اس ایک لفظ کے اندر خوف، غصہ، بے بسی، سب کچھ بند تھا۔ فضر نے بے یقینی سے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، کسی جلتے ہوئے انگارے کی طرح۔ میں نے اسے کھا لیا۔ دھڑکتے لفظ اس کے لبوں سے ٹوٹے۔ رئیس نے پل بھر کو آنکھیں بند کی، اس کے اندر کی پوری سلطنت جیسے لمحہ بھر کو خاموش ہو گئی۔ شاید اس نے زندگی میں پہلی بار اپنی ہتھیاروں سے خالی ننگی روح کی حالت محسوس کی تھی۔ ولی، اس کا ولی، جسے وہ اپنا وارث سمجھتا تھا، جو کل رات اس کی بنیادوں میں دیمک کہلایا تھا، آج اسی کی زندگی اور موت کے بیچ وہ کھڑا تھا، بے حال، بے اختیار۔ کوئی کچھ کرے، وہ آہستہ سے بڑبڑایا، جیسے خود سے مخاطب تھا۔ اس نے مڑ کر خالی راہداری کو دیکھا، جیسے وہ ہاسپٹل کی سفید دیواروں سے مدد مانگ رہا ہو۔ آنکھوں کے کناروں پر نمی چمکی، مگر اس نے پلکیں سختی سے جھپک لی۔ اسی لمحے مراد بھاگتا ہوا آیا۔ اس نے جیسے ہی فضر کی حالت دیکھی تو پل بھر کو سانس نہ روک گیا۔ فضر! وہ اس کے پاس جھکا، لیکن پھر محمودانہ طور پر پیچھے ہوا۔ ڈاکٹر کیا کہہ رہے ہیں؟ فضر نے خاموشی سے سر نفی میں ہلایا۔ اس کے ہونٹ پھڑپڑائے، مگر کوئی لفظ نہیں نکلا۔ دور آئی سی یو کے شیشے کی کھڑکیوں کے پار ڈاکٹر ایک اور انجیکشن کی تیاری کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد فلک اور فخر بھی آن پہنچے۔
फलक के हाथ में दुआ की तस्बीह थी जो बेकाबू उंगलियों के बीच गिरती संभलती रही। उसने फजल को बाहों में भर लेना चाहा, मगर वो बिल्कुल जामिद हो चुकी थी, जैसे किसी ने उसके वजूद को बर्फ़ की सल में बदल दिया हो। और आखिर में अरूजा, वो कदम ब कदम हॉस्पिटल की राहदारी में चली आ रही थी। उसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं था, जैसे उसने सारे एहसासात कहीं रास्ते में दफन करके कदम बढ़ाए हों। रईस ने उसे आते देखा तो पल भर को उसका दिल किसी नामालूम दर्द से भर गया। आज उसके सबसे करीबी लोग उस सफ़ेद राहदारी में जमा थे और सबकी आंखों में बेबसी और शिकस्त लिखी थी। वो सामने आई वली के वजूद को आईसीयू में देखकर उसका दिल डूब गया। शायद चंद लम्हों के लिए ज़मीन ने उसके कदमों से रिश्ता तोड़ लिया। उसकी आंखों के नीचे हल्के और थकन के निशानात वाज़ेह थे, मगर कुछ कहे बगैर वो आईसीयू के दरवाजे के सामने दीवार के साथ खड़ी रही। चेहरे पर वही पथरीली खामोशी, मगर आंखों में एक गहरा टूटा हुआ अंधेरा। रईस ने उसकी तरफ देखा। 2 कदम आगे बढ़कर वो ठहर गया। उसने जैसे कुछ कहना चाहा, मगर ज़बान हलक में अटक गई। अल्फाज उसके पास थे ही नहीं। वो बस अपने दोनों हाथ साइड में भींचे खड़ा था, अंदर से टूटता हुआ, बाहर से मजबूत रहने की कोशिश करता हुआ। ये सब मेरा कसूर है। उसकी आवाज़ खुरदुरी पड़ गई। वो बहुत आहिस्ता से बोला, मगर अरूजा ने वो अल्फाज सुन लिए। उसने सर उठाकर उसे देखा, आंखों में शिद्दतनाक कर्ब लिए। आप कसूर की बातें ना करें अभी, बस वो जिंदा रहे, बस वो बोल नहीं पा रही थी। रईस की एक थकी हुई सांस खारिज हुई। मैंने उसे वफादारी का इम्तिहान लिया और वो मौत के दरवाजे पर खड़ा है। उसकी आंखों में पहली बार बेबसी की नमी तराशी गई। और शायद ये सब मेरे ही हाथों शुरू हुआ था। वो दीवार के साथ पुश्त लगाकर खड़ा था। उसका मजबूत वजूद थर उठा था। आंखें छत की तरफ उठाए जैसे रब्बे जुल्लाल से सवाल कर रहा हो, मैंने सब कुछ खोकर क्या पाया? सन्नाटे में सिर्फ मशीनों की बीप बीप रह गई थी। शीशे के पार वो मौत वह जिंदगी की सरहद पर लड़ रहा था। बाहर सब खामोश थे। हर एक की रूह उस लम्हे बर्फ की तरह साकित हो चुकी थी। वो रात एक ऐसी रात थी जो शायद जिंदगी भर किसी की याद से मिटने वाली नहीं थी, क्योंकि उस रात में हकीकत ने सबके दिलों से जख्मी आवाज़ में बस एक सवाल पूछा था, वफादारी की कीमत क्या होती है? रात और गहरी हो चुकी थी। हॉस्पिटल के बाहर खड़े दरख्तों की टहनियाँ सर्द हवा के झोंके से सिसकियाँ भर रही थीं। वार्ड की खिड़कियों से मध्यम जर्द रोशनी बाहर छन छन कर फिसल रही थी, मगर उस रोशनी का एक भी जर्रा उस वक्त फजल के दिल पर नहीं उतर पा रहा था। वो खामोशी से राहदारी से निकलकर एक छोटे से खाली राहदारी में आ गई। वहाँ इबादतगाह का दरवाज़ा खुला हुआ था। कोई भी अंदर नहीं था। सफ़ेद मार्बल की ठंडी सीढ़ियों पर कदम रखते ही उसके अंदर कुछ लरस सा गया। दरो दीवार कुरान आयत की तालाई फ्रेम लटक रही थी और एक कोने में जाय नमाज रखे थे जिनसे किसी के आंसू की महक आ रही थी। वो चंद लम्हों तक दरवाजे के पास खड़ी रही, जैसे खुद से सवाल कर रही हो, क्या मैं यहाँ आ सकती हूँ? फिर उसने देर नहीं की, अंदर दाखिल होकर वजू किया। फिर खामोशी से आगे बढ़कर जाय नमाज उठाया, अपनी कांपती उंगलियों से उसे बिछाया। हॉस्पिटल की रोशनियाँ यहाँ से बहुत दूर महसूस हो रही थी। धुंध, बेबसी, खामोशी सब उसके दामन से लिपट गए। आज वो मनार फैशंस की मालकिन नहीं थी, ना दुनिया की मशहूर तरीन कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर, ना वो औरत जो ये कहती थी कि अगर मैं सजदे में गिरी तो तख्त से गिर जाऊंगी। आज वो सिर्फ एक बीवी थी, एक आम सी खौफजदा टूटी हुई औरत जिसकी पूरी दुनिया आईसीयू के शीशे के उस पार धड़क रही थी। वो धीरे से सजदे में झुक गई। पहला लम्हा खामोशी, दूसरा लम्हा नम आंखों की लर्जिश, तीसरा लम्हा टूटकर बिखरने की अजियत। या अल्लाह, उसकी आवाज़ बहुत आहिस्ता निकली, जैसे किसी ने उसके गले की गिर्द सन्नाटे की रस्सी लपेट रखी हो। मैंने हमेशा खुद को मजबूत कहा, सबके सामने सर ऊंचा रखा, मगर आज मैं कमज़ोर हूँ। उसके अल्फाज आंसू में भीगे जा रहे थे। वो मेरा गुरूर है, मेरी हिम्मत, उसकी सांस मेरे दिल की धड़कन है। अगर वो रुक गई तो मैं भी मर जाऊंगी। उसकी हिचकियों ने सारी खामोशी चीर डाली। सजदे के फर्श पर आंसू के नन्हे कतरे टूटकर गिरे और जाय नमाज जज्ब हो गए। मुझे इस दुनिया की कोई शोहरत नहीं चाहिए, ना फैशन का कोई ताज, ना नाम, ना ताकत। बस मेरे शोहर को ज़िंदगी दे दें, मुझसे मेरा वली मत छीने। एक लम्हे के लिए उसके अल्फाज टूट गए। गहरी सांस ली, आंखें बंद की और पूरी टूटती हुई रूह के साथ सरगोशी की। या रब, वो तेरी अमानत है, लेकिन आज मैं वो अमानत वापस मांगने आई हूँ। मुझे मेरा वली जिंदा वापस चाहिए। मस्जिद के अंदर मौजूद हल्की सी रोशनी उसके सजदे पर ठहर गई, जैसे रब की रहमत खामोशी से उसे सुन रही हो। वक्त वहाँ रुक गया।
इबादत गाह की दरो दीवार फजर मराज के सजदे को देखकर साकित खड़ी रहे, क्योंकि उस औरत ने आज तख्त से नहीं, खुद से गिरकर दुआ मांगी थी, और ये दुआ सिर्फ ज़बान नहीं, रूह से निकली थी। रात की सर्दी आहिस्ता आहिस्ता अपने पर समेटकर सुबह की नरम मगर बेरंग उजाले में तब्दील हो रही थी। आईसीयू के बाहर अब इतनी भाग दौड़ नहीं थी, जैसे थकन से सारी आवाज़ें खामोश हो गई हों। वो वहीं कुर्सी पर बैठी थी, आंखों के नीचे गहरे हल्के महसूस हो रहे थे। शॉल उसके वजूद के गिर्द लपेटी हुई थी और हाथों में दुआ की तस्बीह, जो हर चंद सेकंड बाद बेसाख्ता उसकी उंगलियों के बीच घूमने लगती। फलक सामने वाली कुर्सी पर चुपचाप बैठी थी। उसने फजर के लिए चाय का कप उठाया, मगर उसके होठों ने जैसे किसी भी चीज़ को कबूल करने से इनकार कर दिया था। दोनों के दरमियान खामोशी थी, मगर ये खामोशी किसी बोझ की तरह उनके दिलों पर थी। अचानक आईसीयू का दरवाज़ा हल्का सा खुला। एक नर्स निकली और फजर की तरफ नज़र उठाई। मिसिस औरंगजेब। फजर पल भर को अपनी जगह पर मुंजमद रही, फिर एकदम खड़ी हुई। जी। नर्स ने नरम लहजे में हल्का सा मुस्कुरा कर कहा। वो होश में आ गए हैं, आप चाहें तो अंदर आ जाएं। बस यही एक जुमला था। फजर की सांस जैसे रुक गई, आंखें पलक झपकना भूल गई। फलक ने फौरन उसका हाथ थामा। जाओ, उसने धीमे लहजे में कहा, और वो कदम उठाती अंदर की जानी बढ़ी। आईसीयू में मध्यम सफ़ेद रोशनी थी। मशीनों की बीप बीप कदरें नरम हो चुकी थी। वो पुरसुकून अंदाज में बेहिस्सो हरकत लेटा था। सर पर पट्टी बंधी हुई थी, कंधे पर पलिस्टर चढ़ा हुआ था, मगर आंखें आहिस्ता आहिस्ता नीम हुआ थी, और उन नीम हुआ आंखों के अंदर एक थका हुआ सा सुकून था। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई, उसके पांव जम से गए। कुछ भी कहा नहीं जा सका। बस उसने दोनों हाथों लबों पर रखे और फिर धीरे धीरे उसके करीब आई। वली ने सर हल्का सा उसकी तरफ मोड़ा। आंखों के गोशों में नमी चमकी, जैसे मिनटों की नहीं, बरसों की मसाफत के बाद वो उसे देख रहा हो। उसके लब हिले, आवाज़ बहुत मध्यम थी। हाय बेगम। वो जब्त के कड़े मराहिल से गुजरती उसके करीब बैठ गई। उसका हाथ अपने दोनों हाथों में लिया। आंसू की खामोशी से उसकी पलकों से गिरने लगे। तुमने मुझे डरा दिया, वो कांपते लहजे में बोली। चेहरे की हालत बुरी हो चुकी थी। वली ने अपनी उंगली को हल्की सी जंबीस दी। मैंने कहा था मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुम डर क्यों जाती हो? उसकी आवाज़ बहुत कमज़ोर थी, मगर उसके हर लफ्ज़ में वही गहरी मोहब्बत और यकीन छुपा था। फजर ने उसके हाथ को पेशानी से लगाया और धीरे से रोती रही। उससे थोड़ा पीछे फलक खामोशी से खड़ी थी। उसने पलकें झुका ली और पलट गई, इस मंजर की शिद्दत को अपने दिल में जज़ब करते हुए। कुछ मंजर लफ्ज़ों से नहीं, खामोशी से महफूज किए जाते हैं। उसके रोने पर वली ने एक गहरा सांस लिया। तुम ठीक हो? वो उस लम्हे भी खुद के बजाय उसकी फिक्र कर रहा था। फजर ने अपने आंसू साफ किए और ज़बरदस्ती मुस्कुराई। हाँ, बिल्कुल ठीक। चंद लम्हों तक वो दोनों एक दूसरे को देखते रहे। दर्द, असियत, खौफ सब उनकी आंखों के पीछे दबे हुए थे, लेकिन उन दोनों की मौजूदगी उन सब से कहीं ज़्यादा ताकतवर थी। वो अभी तक उसका हाथ थामे हुए थी। आंखों के सूजन और हल्की हल्की सुर्खी बता रही थी कि कितनी देर तक वो रोती रही थी। वो खामोशी से उसकी तरफ देख रहा था। एक अजीब सा सुकून था कि वो उसके सामने मौजूद है, सांस ले रही है, और उसी के हाथ में उसकी सांसें बंधी हुई हैं। उसी लम्हे उसकी नज़र फजर के हाथ में मौजूद छोटी सी सफ़ेद तस्वीर पर पड़ी, जो उन दोनों के हाथों में दबी हुई थी। उसने पलकों में शरारत समेटकर एक लंबा सा सांस लिया। ओह माय गॉड, वो बहुत आहिस्ता से बोल उठा। नजरें उस तस्वीर पर जमी थी। वो चौंकी। तुम वाकई तस्वीर कर रही थी? अंदाज उसे तपाने वाला था। ये सुनते ही फजर की आंखों में आंसू फिर से उभर आए। तो मेरे लिए दुआ कर रही थी? वो उसे तंग कर रहा था, जैसे ये अनहोनी बात हो। क्या मुझे होश में रहना चाहिए? दी फजर मराज मेरे लिए दुआ मांग रही थी। वो रोते हुए हंसी और फिर रो दी। एक थप्पड़ उसके बाजू पर मारा। आह जालिम औरत, ध्यान से, पहले ही एक कंधा टूटा हुआ है। फजर की आंखें खौफ से फैल गई। सॉरी, वो घबरा गई। उसकी हालत देखते हुए टूटे कंधे वाले शख्स ने फौरन उसका दूसरा हाथ भी थाम लिया। बहुत धीरे से, मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। वो अपने जख्मी हाथ से आहिस्ता से उसके आंसू साफ करने लगा। अगर तुम मेरे लिए दुआ करो, वो भी तस्बीह के साथ, तो मैं गुरूर से हंसूं नहीं तो और क्या करूं? फजर ने पलकें झुकाई। आंसुओं से भीगी हुई मुस्कुराहट ने उसके लबों को छुआ। डरो नहीं, उसने नरम लहजे में कहा। अब मैं हूँ और तुम हो, और तुम्हारी ये तस्बीह और दुआएं जिन्होंने मुझे वापस खींच लिया। यकीन रखो, दुनिया का कोई शख्स, कोई हादसा हमें अलग नहीं कर सकता। फजल ने ससकते हुए सर हिलाया और धीरे से सरगोशी की। अगर दोबारा कभी मुझे इतना डराया तो मैं तस्बीह नहीं, एहसाने सवाब के लिए तुम पर पूरा कुरान पढ़ दूंगी। वो खफगी से बोली तो बेसाख्ता हंस दिया, हल्की सी थकी हुई मगर दिल से निकली हुई हंसी। और इस हंसी के अंदर फजल को अपनी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत आवाज़ सुनाई दी।
वो अपना सर उसके सीने से लगाकर खामोशी से साकित हो गई। वो धीरे धीरे उसके बालों में उंगलियां फेरने लगा। उसकी दुआएं सुन ली गईं। दुआएं रद्द होती हैं भला? मोहब्बत क्यों अरूजा, मोहब्बत क्यों? ये वो अल्फाज थे जिन्होंने अरूजा को जिंदा दरगोर कर दिया था। रात के गहरे सन्नाटे में वो अपने कमरे की खिड़की के सामने खड़ी थी। पूरा कमरा मध्यम पीली रोशनी में डूबा हुआ था और उसकी पुष्ट पर आवाज़ें शीशे की फ्रेम्स में सिया साए उभर रहे थे, जैसे उसके अंदर की तारीकी कमरे में फैल गई हो। फ़ोन उसके कान से लगाया हुआ था, मगर उसके होठों पर ना कोई तासुर था, ना कोई हलचल। दूसरी जानिब मीसम की घबराई हुई आवाज़ बार बार सुनाई दे रही थी, इल्तिजा कर रही थी, अरूजा प्लीज़ मैडम, ऐसा मत करें, हम कोई और रास्ता निकाल लेंगे। अरूजा की भूरी आंखों में एक अजीब सी धुंध उतरी हुई थी, जैसे वो इस दुनिया में मौजूद होकर भी कहीं और देख रही हो। उसने छत की तरफ देखकर एक लंबी सांस अंदर खींची, फिर धीमे बिल्कुल ठहरे हुए लहजे में कहा, ये बहुत ज़रूरी है मीसम, मुझे उम्मीद है तुम संभाल लोगे। एक लम्हे खामोशी के बाद उसने कॉल काट दी। फ़ोन उसके हाथ के एक जान पत्थर की तरह रह गया था। घड़ी देखी, वक्त रेत की मानिंद फिसलता जा रहा था। फिर उसने आहिस्तेगी से दरवाज़ा खोला और लॉन्च में आ गई। मिस्टर जमाल लॉन्च में सोफे पर बैठे थे, सामने कुरान खुला हुआ था। उसने चंद कदम आगे बढ़कर उनके सामने खड़ी होते हुए इत्तला दी, बहुत ज़्यादा किसी आम दिन की तरह, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। मिस्टर जमाल ने एक लम्हे को सर उठाया। उनकी आंखों में एक मेहरबान सी चमक उभरी। उन्होंने उसे बगौर देखा, जैसे कुछ ढूंढ रहे हों, जैसे उसके सपाट चेहरे के पीछे छुपे तूफान को समझने की ख्वाहिश लिए हुए हों। चल वापस आ जाना, मैं इंतज़ार करूँगा। अरूजा का होठ एक लम्हे को होले से कपकपाए, एक नाकाबिले दीद लजिश जो उसके अंदर के आखिरी इंसानी एहसास का सबूत थी। लेकिन उसने फ़ौरन लब भींच लिया और सिर्फ सर हिलाया। उसके बाद वो मुड़ी और तेज नपे तुले कदमों से बाहर निकल गई। उसकी गाड़ी शहर के तारीख सड़कों पर खामोशी से किसी शिकारी जानवर की तरह तैर रही थी। विंडशील्ड पर बारिश की बूंदों की हल्की सी तह जमा हो रही थी, जिससे बाहर की दुनिया किसी धुंधले ख्वाब का मंजर पेश कर रही थी। उस वक्त सड़कें तकरीबन खाली थी, जैसे और पूरी दुनिया किसी अनजान घाटी में गुम हो गई। वह सफ़ेद सादा शर्ट और नीली पैंट पहने हुए थी, बाल सख्ती से जोड़े बनाकर बंधे हुए थे, चेहरा मुकम्मल तौर पर सपाट, आंखों पर बड़े फ्रेम वाला चश्मा, जैसे जज्बात को छुपाने के लिए कोई आहनी निकाब ओढ़ कर रखा हो, जो उसने उठाकर बालों पर जमा लिया। स्टीयरिंग पर रखी उंगलियां एकदम सख्त हुई। फिर उसने दूसरी तरफ रखे फ़ोन को उठाया, एक मखसूस नंबर डायल किया। दूसरी जानिब से नर्स ने कपकपाते आवाज़ में फ़ोन उठाया, सब देर है मैडम, मैंने इंजेक्शन लगा दिया है, वो 4 घंटे तक नहीं उठेंगे। उसके चेहरे पर एक बेतासुर सा सुकून उतर आया। गाड़ी पहलू बदलकर सीधे हॉस्पिटल के सामने जा रुकी थी। उसने चश्मा आहिस्तेगी से उतार कर एक गहरी खामोश नज़र पूरे हॉस्पिटल की इमारत पर डाली, जैसे कोई कमांडर जंग से पहले आखिरी बार मैदान को देखता हो। फिर वो गाड़ी से उतरी। एम्बुलेंस की मध्यम सी बीप बीप, राहदारियों की मध्यम रोशनियाँ, मगर उस लम्हे सब कुछ ठहरा हुआ था, जैसे ये इमारत किसी तूफान से चंद सानिये पहले सांस रोक चुकी हो। फिर उसने फ़ोन निकाला। उसकी उंगलियां लम्हा भर को हल्की सी लरजी। फिर एक नंबर मिलाया, रिंग हो रही थी और फिर कॉल उठाई गई। अरूजा, दूसरी जानिब रईस था। पल भर को सन्नाटा छा गया। आपको पता है वली की इस हालत का जिम्मेदार कौन है? वो खामोश रहा, जैसे समझने की कोशिश कर रहा हो। ना आप, ना मैं। उसकी आवाज़ मज़ीद ठंडी और जहरीली हो गई। फिर जहर भरी एक सांस खींची। उसकी हालत की जिम्मेदार वो मलून लड़की है, वो जिसे मैं शदीद नफरत करती हूँ, और आज मैं उसका काम तमाम करने जा रही हूँ। रईस की रीढ़ की हड्डी में जैसे बर्फ घुस गई। क्या बकवास कर रही हो? वो गुर्राया। वो हौले से हंस दी। आप जानते हैं अरूजा जमाल बकवास नहीं करती। उसके होठों पर एक जहर आलूद मुस्कुराहट उभरी। जब से ये डोपलगैंगर हमारी ज़िंदगी में आई है, सब तबाह हो गया है। ये सब कुछ निकल गई है और आज मैं इसे हमेशा के लिए ख़त्म करने जा रही हूँ। उसने बिना रईस का जवाब सुने फ़ोन बंद कर दिया। फिर उसने हॉस्पिटल की तस्वीर खींची और उसे सेंड कर दी, साथ ही लाइव लोकेशन भेज दी। ये एक दावत थी, एक चैलेंज था। आकर देखो मैं क्या कर सकती हूँ। फिर उसने अपनी पिस्तौल निकाली, एक धीमी सी क्लिक के साथ मैगज़ीन लोड किया और उसे जेब के अंदरूनी हिस्से में वापस रख लिया। सूरज तो कब का गुरूब हो चुका था और पूरी राहदारी में एक गैरमरी सा साया उतर आया था। हॉस्पिटल के अंदर सिक्योरिटी कैमरे उस वक्त अंधे हो चुके थे। बिजली के कुछ सर्किट्स पहले ही ट्रिप हो चुके थे। राहदारियों के दरमियान लंबा अंधेरा फैला हुआ था। बस कहीं कहीं अस्तराबी लाइट्स टिमटिमा रही थी। वो खामोशी से चलती जा रही थी।
कदम हूबहू किसी तरबियत याफ्ता कातिल की तरह नापे हुए थे। उसके साथ मिले चंद अमले के अफराद और उसके अपने आदमी मुख्तलिफ राहदारियों के मोड़ों पर खड़े थे, सिर हिलाकर उसे रास्ता क्लियर होने का इशारा दे रहे थे। जैसे ये हॉस्पिटल नहीं, गोया जंग का मैदान हो, और वो एक ऐसी फौजी थी जो दिल में एक खूनी इरादे के साथ यहाँ अपना आखिरी मारकर लड़ने आई थी। फिर अचानक कड़क आवाज़ से बिजली के दो तेज झमाके हुए। पूरी राहदारी एक लम्हे के लिए सफ़ेद रोशनी में चमकी थी और फौरन ही गहरी स्याही में डूब गई। तमाम लाइट्स बंद, इमरजेंसी सिस्टम पर सुर्ख बत्ती जलकर फ्रीज हो गई। सिर्फ कहीं दूर से वेंटिलेटर की बीप बीप आ रही थी। उसने लम्हा भर को आंखें बंद की, जैसे अपनी पूरी नफरत और तकलीफ को एक मुट्ठी में भींच रही हो। फिर कदम आगे बढ़ाए, राहदारी के इस तरफ मुड़ी जहाँ प्राइवेट स्वीट का छोटा सा सफ़ेद बोर्ड लगा था, और उस दरवाजे के पार फजर थी, और वहाँ से सिर्फ चंद कदम दूर मौत उसे खुश आमदीद कहने के लिए तैयार खड़ी थी। स्वीट का दरवाज़ा बहुत आहिस्ता से खुला। उसने एक मोहताज सी निगाह पूरे लॉन्च पर डाल दी। हर तरफ गहरी खामोशी थी, उस खामोशी जैसी जो किसी भारी तूफान से पहले उतरती है। वो अंदर दाखिल हुई। उसके कदम मजबूत थे, सांसें बिल्कुल मुतवाज़न। वो चलती हुई आई और आहिस्तेगी से शीशे की स्लाइडिंग डोर को खोलकर आगे बढ़ी जहाँ वली का बिस्तर था। वह सफ़ेद चादर में बेहोशी की हालत में मुकम्मल सुकून में पड़ा था। मशीनों की बीप बीप बहुत हल्की थी, जैसे किसी धड़कन को आखिरी हद पर रोक लिया हो। वो कुछ लम्हों तक यूं खड़ी रही जैसे वक्त जम गया हो। फिर उसके होठों से एक मुहीन सी सरगोशी जैसा जुमला निकला, आई एम सॉरी। आंखों में कोई नमी नहीं थी, सिर्फ एक शदीद शिकस्त, एक अजियत। फिर वो एकदम पलटी और कमरे से बाहर निकल गई, मगर साथ ही अंदर खड़ी सामान की वो ट्रॉली बाहर खींच लाई जिसमें मुख्तलिफ तबी आलात रखे थे। फिर उसने दरवाज़ा बाहर से लॉक किया। चेहरे पर फिर वही फौलादी सपाटपन लौट आया। वो मुड़ी ही थी कि पीछे स्वीट का दरवाज़ा खुला और फजर अंदर दाखिल हुई। वो फ़ोन सुनने गई थी, यह सिग्नल ड्रॉप हो रहे थे। एक पल को उसके कदम ज़मीन से चिपक गए। सामने अरुजा को इस वक्त वहाँ देखकर और उसके हाथ में कमरे की चाबी देखकर उसके अंदर खतरे का अलार्म बजा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसकी आवाज़ दबी हुई थी मगर बेचैन। अरुजा ने आंखें उस पर गाड़ दी, गहरी, ठंडी, नफरत से भरी हुई एक नज़र, जैसे किसी अंधी गार का दहाना खुल गया हो। अभी कुछ नहीं किया, करना है। वो कदम कदम उसकी तरफ बढ़ी। फजर वहीं जमी रही। क्या मतलब है तुम्हारा? अरुजा अब सामने आ खड़ी हुई थी। उसकी सांस भी गर्म थी और लहजा भी। तुम मलून हो, तुम डायन हो। तुमने मेरी ज़िंदगी के दो सबसे अहम मर्दों को खा लिया। तुमने मुझे वली से महरूम किया और रईस से भी। तुम एक नासूर हो। फजर मराज, तुम मर क्यों नहीं जाती? फजर हैरत में लब खोल न सकी, सिर्फ उसकी आंखें फैल गई। इस शिद्दत की नफरत उसने कभी किसी की आंख में नहीं देखी थी। क्या बकवास कर रही हो? वो थोड़ा संभल कर बोली, मगर आवाज़ में कपकपाहट थी। बकवास? वो तंजिया हंसी। बकवास ये है कि तुम अब तक जिंदा हो। तुमने सब कुछ निगल लिया है। तुम्हें जिंदा नहीं रहना चाहिए, और मैं आज ये नेक काम करने आई हूँ। जिंदगी चाहती हो तो भाग जाओ यहाँ से, हमेशा के लिए वली और रईस से बहुत दूर दफ़ा हो जाओ। वो गुर्राई। ये सुनते ही फजर का चेहरा सुर्ख पड़ा। मैं भागने वालों में से नहीं हूँ, वो उसी के अंदाज में कहती आगे बढ़ी। अरुजा की नखोवत भरी हंसी उभरी। तो फिर मरो। और अगले ही पल उसने आगे बढ़कर फजर के गर्दन एक हाथ से पकड़कर उसे पूरे जोर के साथ पीछे दीवार पर दे मारा। दीवार में पटके जाने की आवाज़ पूरे लॉन्च में गूंजी। दूसरी जानिब शहर की एक सड़क पर रईस की गाड़ी हवा की चीरती हुई दौड़ रही थी। चेहरे पर हवाइयाँ, आंखों में खौफ। उसकी सांसें भारी थी। ट्रैफिक को चीरती हुई वो सिर्फ उसके जहन में अरुजा के जुमले गूंज रहे थे। वो ऐसे मजाक नहीं करती थी। इधर हॉस्पिटल के स्वीट के अंदर अरुजा बार बार उसे उठाकर दीवार में मार रही थी। तुमने मुझे सबसे अकेला कर दिया। फजर ने अपने बाजू से वार करना चाहा, मगर अरुजा की गिरफ्त फौलाद की थी। वो एथलीट थी, ट्रेंड फाइटर थी। वो चाहकर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकती थी। हाँ, लेकिन वो भागी नहीं थी, वो लड़ रही थी। एक और बार फजर के माथे से खून टपकने लगा। नक्सिया दुपट्टे में जज्बा होता चला गया। भागो वरना मर जाओगी। उसने घुटने की ज़रब उसके पेट पर मारी थी। वो दर्द के मारे झुक गई थी। सांस टूट कर बाहर आई। मैं, मत मारो। वो उससे लड़ना नहीं चाहती थी। वो समझने की कोशिश कर रही थी उसे हुआ क्या है। अरुजा ने उस बार बाजू पकड़ा और पूरी कुव्वत से उसे उस दीवार की तरफ खींचा जहाँ स्वीट का शीशा था। धड़ाम की आवाज़ उभरी और वो दीवार से टकरा गई। शीशा हल्का सा किरचियों की तरह थरथराया।
नाक से खून बहने लगा। चली जाओ यहाँ से। उसकी सांसें भारी हो रही थी मगर वो फिर भी खड़ी हुई। मैं तुमसे नहीं डरती, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, उसने हाँफते हुए कहा। ये सुनते ही अरुजा की आंखों में बगावत की आग दहक उठी। तो फिर मरो। वो जेब से पिस्तौल निकाल रही थी कि उसी लम्हे स्वीट का दरवाज़ा झटके से खुलकर दीवार से जा लगा था। रईस अंदर दाखिल हुआ, चेहरा सुन, आंखों में बगोले। वो 2 कदम के फासले पर रुक गया। एक नज़र फजर पर खून आलूद दीवार के साथ लगी हाँफती हुई उस एक मंजर ने उसके अंदर का बादशाह चीर कर रख दिया था। उसकी पेशानी की रगें भड़की, जबड़ा भीज गया और आंखों में ऐसे शोले भर गए थे कि जैसे क़यामत का तूफान आंखों के अंदर कैद हो। अरुजा, वो दहाड़ा, ऐसी दहाड़ के लगता था पूरी इमारत हिल जाएगी। अरुजा ने देखा, वो बमुश्किल मुस्कुराई और रईस पर नजरें गाड़ी। बॉस, देखे ना ये लड़की कितनी ढीठ है। मैंने इसे कहा था कि वली को छोड़ दे, आपको छोड़ दे, दफा हो जाए, लेकिन नहीं, ये मानने को तैयार नहीं। फिर उसने फजर की तरफ देखा जिसने दीवार का सहारा लेकर खुद को संभाल लिया था। आखिरी बार कह रही हूँ लड़की, वली को, रईस को, इस शहर को, सब छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें वो अजियत दूंगी कि मौत भी तुम पर तरस खाएगी। फजर ने अपनी नाक से बहते खून को आस्तीन से पोंछा। उसकी नजरें सीधी अरुजा की आंखों में गड़ी थी। उसकी आवाज़ कपकपाई, बल्कि बर्फ की तरह सर्द और मजबूत। मैं अपनी चीज़ नहीं छोड़ती। ये जुमला नहीं, ऐलान जंग था। अच्छा, उसने इस्तेज़ाइया सर हिलाया। तो फिर यही मंजूर है। उसने पिस्तौल को जेब में ही रहने दिया। उसकी नजरें साथ खड़ी, तभी आलत की ट्रॉली पर पड़ी। उसका चेहरा एक सफ़ा काना खुशी से तमतमा उठा। गोली से मरना बहुत आसान मौत है, तुम इसकी हकदार नहीं। उसने ट्रॉली से एक वजनी स्टेनलेस स्टील की ट्रॉली उठाई। इससे पहले कि रईस कुछ समझता, स्टील की ट्रे हवा में एक कोस बनाती हुई पूरी कुव्वत से फजर के कंधे और पसलियों पर लगी। टकराने की आवाज़ इतनी भयानक थी जैसे कोई हड्डी टूटी हो। उसके मुंह से एक घुटी हुई चीख निकली और वो फर्श पर गिर गई। रईस, जो पहला मंजर देखकर साकित हो गया था, एकदम से होश में आया। तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया। वो अब ट्रॉली से कुछ और ढूंढ रही थी। अरुजा, बस करो, पागल हो गई हो तुम। वो उसकी जानी बढ़ा मगर उसके सर पर खून सवार था। उसने ट्रॉली को एक तरफ हाथ बढ़ाया और उसकी उंगलियां चमकदार नोकीले सर्जिकल कैंची पर बंद हो गई। वो उसे पकड़कर तेजी से फजर की जानिब लपकी। ये वो मंजर था जिसने रईस के अंदर के हर साबिये को तोड़ दिया था। उसने एक जानवर की सी कुव्वत से धारते हुए अरुजा को पकड़ा और उसे पूरी ताकत से पीछे खींचा। बॉस, छोड़े मुझे। वो रईस की गिरफ्त से फड़फड़ा रही थी। ये हम सबको खा जाएगी, ये टायन है। खामोश। रईस ने उसे जोड़कर दीवार से लगाया। कैंची उसके हाथ से छूटकर फर्श पर गिरी थी और खनखनाती हुई दूर जा रुकी थी। उसकी आंखों में वो शोले थे जो अरुजा ने कभी नहीं देखे थे। ये मुकम्मल बेजारी और नफरत के शोले थे। तुमने, रईस की आवाज़ घुटी घुटी हुई थी। ये तुमने क्या किया अरुजा, ये तुमने क्या किया? उसके अल्फाज, उसके लहजे, उसकी आंखों में बेयकीनी, टूटा हुआ मान था। अरुजा ऐसा कैसे कर सकती थी? स्वीट में अब सिर्फ 3 आवाज़ें थीं। फजर की टूटी हुई दर्द भरी सांसें, अरुजा की तेज़ जुनूनी सांसें और मॉनिटर की वो बेरहम मुसलसल आवाज़, बीप बीप बीप। रईस की गिरफ्त में जकड़ी अरुजा के होठों पर एक टूटी हुई भयानक हंसी नमूदार हुई। ये हंसी नहीं थी, ये रूह की टूटने की आवाज़ थी। फिर एक नाकाबिल यकीन तेजी से उसने बेल्ट में लगी पिस्तौल निकाला। धात की वो आवाज़ उस खामोश वहशत में किसी कोड़े की तरह बरसी। पिस्तौल का दहाना सीधा फजर की तरफ था जिसकी आंखें हैरत से फैलकर पथरा गई थी। आज ये मरेगी। अरुजा की आवाज़ में अब कोई इंसानी जज्बा बाकी नहीं था, सिर्फ एक बंजर कातलाना इरादा। नहीं। वक्त जैसे एक लम्हे के लिए मुंजमद हो गया। पिस्तौल का ट्रिगर दबने वाला ही था कि उसने अपनी पूरी कुव्वत से अरुजा का हाथ ऊपर की तरफ धकेला। गोली बे आवाज़ चली। छत में एक सियाह सुराख बन गया और पलस्तर का एक बड़ा सा टुकड़ा बर्फ की गोले की तरह झड़कर नीचे गिरा। कमरे में बारूद की तेज़ तल्ख बदबू ऐसी बिखर गई जैसे मौत ने अपनी आमद का ऐलान किया हो। रईस ने उसकी कलाई मरोड़कर पिस्तौल छीनना चाहा, लेकिन उसने एक तरबियत याफ्ता जंगजू की तरह उल्टे हाथ से उसके सीने पर घूसा दे मारा और खुद एक जस्ट लगाकर पीछे हट गई। उसकी सांसें तेज तेज चल रही थी, आंखें जुनून से देख रही थी। क्या कर रही हो तुम? उसकी आवाज़ फटी हुई थी। ये सब की आखिरी हद थी। वो अरुजा थी, अब तक जिंदा थी। कोई और होता तो उसके हाथों अब तक मर चुका होता। अरुजा की आंखों में बिजली की सी चमक थी। आज आपको फैसला करना होगा बॉस।
वो एक एक लफ्ज़ चबाकर भन बना रही कर बोली थी, मैं या वो। ये कहते ही वो एक जिस्म फजर की तरफ लपकी, वो जो पहले ही नीम जान खड़ी थी पीछे को खिसकी, लेकिन अरुजा ने सर्जिकल ट्रॉली को एक वहशाना झटके से खींचा। ट्रे में रखी स्टील की स्क्रिपल, सर्जिकल फोर्सेप्स और दीगर आलात फर्श पर बिखर गए जैसे धात की दांत बिखर गई हो। रईस के रोब में कांपती हुई आवाज़ गूंजी, अरुजा बस कर दो। ये जैसे इल्तिजा थी, हरगिज़ नहीं। उसने झुककर फर्श से एक चमकदार फोर्सेप्स उठाया। पिस्तौल उसके दाएं हाथ में था, फोर्सेप्स बाएं हाथ में। उसके चेहरे पर अब होश नहीं था, सिर्फ जुनून था, एक ऐसा जुनून जो सब कुछ जलाकर राख कर देने वाला चाहता था। वो दोबारा हमला करने के लिए बढ़ी। रईस बीच में आकर उसे दोनों हाथों से इतने जोर से धकेला कि वो तवाज़ुन बरकरार न रख सकी और सीधी दीवार से टकरा गई। तसादम इतना शदीद था कि पिस्तौल उसके हाथ से छुटकर दूर जा गिरा था, लेकिन उसने पलक झपकने से पहले ही फर्श पर पड़े स्केलपल उठा ली, उसे छुरी की तरह मुट्ठी में जकड़ा और आगे बढ़ी। बॉस पीछे हट जाएं, वरना ये भी। उसकी आवाज़ में अब इल्तिजा नहीं, एक खूनी धमकी थी। रईस की आवाज़ किसी जख्मी शेर की तरह गूंजी, अरुजा होश में आओ, ये तुम नहीं हो। हाँ यही मैं हूँ। वो कुर्राई आवाज़ में सालों का दर्द और कुर्बानियाँ थी, जिसने आपके लिए अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर दी, और आज आप इसी लड़की के लिए मुझे रोक रहे हैं। उसने वो तेज धार स्केलपल अपनी पूरी कुव्वत से फजर की सिमत उछाला। सड़क की आवाज़ उभरी। रईस ने आखिरी लम्हे में खुद को एक ढाल की तरह आगे फेंका। नफरत से फेंका गया वो छोटा सा खंजर, वो स्केलपल उसके बाजू के ऊपरी हिस्से में गहरा चुभ गया। बदन में बिजली जैसी दर्दनाक टीस दौड़ गई थी। उसने होंठ भींचकर जख्मी जगह से स्केलपल निकाला। खून का एक गर्म फव्वारा फूटा और उसने सफ़ेद शर्ट पर तेजी से फैलने लगा, जैसे कोई सुर्ख फूल खिल रहा हो। बिग बी! फजर तड़प कर आगे बढ़ी। पीछे रहो फजर, जाओ यहाँ से, बाहर निकलो। उसकी आवाज़ में अब भी बादशाह की गूंज थी, मगर दर्द से भरी हुई। ये जो हो रहा था नाकाबिल यकीन था। ये देखते ही अरुजा की हंसी उभरी, एक पागलों जैसी दिल खराश हंसी। देखा, मैंने कहा था ना, ये डोपलगैंगर सब कुछ निकल गई है। आप सब इसके गुलाम हो गए हैं। एक पल को वो स्केलपल के खून आलूद ब्लेड पर नजरें जमाई खड़ी रही, फिर एक नाकाबिले फहम हरकत करते हुए झपटकर सोफे के नीचे गिरी पिस्तौल की तरफ लपकी। रईस ने दौड़ते हुए उसका बाजू पकड़ा और उसे अपनी पूरी ताकत से दीवार के उस हिस्से पर दे मारा था जहाँ शीशे का फ्रेम लगा था। पूरा शीशे का फ्रेम लरस कर रह गया और उसमें मकड़ी के जाले की तरह दरारें पड़ गई थी। अरुजा के माथे से खून निकलने लगा था, मगर उसके मुंह से एक जुनूनी टेका निकला, आज ये मरेगी या मैं। वो हंसी, बाहर जाओगी तो मारी जाओगी। बाहर उसके आदमी थे। रईस की आंखों में बेबसी की नमी उभरी, लेकिन उसने एक बाजू से उसे दीवार के साथ जकड़े रखा और दूसरे हाथ से पिस्तौल को ठोकर मारकर मजीद दूर फेंक दिया। अरुजा, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, उसने फटे हुए जख्मी लहजे में कहा। तो फिर उसे मरने दे, मैं या वो। वो अपनी पूरी कुव्वत से झटका खाकर रईस की गिरफ्त से बाहर निकली। पास पड़े ऑक्सीजन सिलेंडर को जोर से धकेला। सिलेंडर लुढ़कता हुआ फजर के पांव से टकराया। फिर उसने वार करने के लिए दीवार के साथ रखा आहनी बेड साइड स्टैंड उठाया। इससे पहले वो उसे फजर को दे मारती, रईस ने अपनी पूरी कुव्वत से एक लात घुमाकर उसके पेट पर दे मारी। ये वार इतना शदीद था कि अरुजा के आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मुंह से एक करहा निकली, जिस्म बेजान होकर पीछे फर्श पर लड़क गया था। बेड साइड स्टैंड उसके हाथ से निकलकर दाएं जानिब गिरा और कड़कड़ाता हुआ रुका। अब वो फर्श पर पड़ी थी, हिजानी अंदाज में हंस रही थी, हाँप रही थी, गर्दन नफी में हिला रही थी। नहीं नहीं, आज या मैं या वो। घुटनों के बल बेपनाह हिम्मत से उठी। खून उसके माथे से बहकर उसकी गर्दन और सफ़ेद शर्ट को सुर्ख कर रहा था। रईस अब तकरीबन टूट चुका था। वो दुश्मनों से लड़ सकता था, अपनों से नहीं। सांसें तेज, बाजू से मुसलसल टपकता खून, मगर उसने एक कदम आगे बढ़कर खामोशी से अपने बाजू फैला दिया और फजर के सामने एक जिंदा दीवार बनकर खड़ा हो गया। तुम्हें उस तक पहुंचने के लिए मुझे मारना होगा अरुजा। अरुजा साकित रह गई। उसके हाथ में पड़ा सर्जिकल फोर्सेप्स कपकपाने लगा। उसकी आंखों में एक लम्हे के लिए दुख, वहशत, मोहब्बत, नफरत सब एक साथ उभरा और डूब गए। नहीं, सिर्फ ये मरेगी। वो एक आखिरी दिलरोज चीख के साथ आगे बढ़ी। फोर्सेप्स हवा में चमका, लेकिन रईस ने एक झटके से उसके हाथ से फोर्सेप्स छीनकर उसे एक बार फिर उसे पीछे धकेला। वो दीवार से टकराई।
इस बार वो सीधी जमीन पर गिरी और उसकी परेशानी पूरी कुवत से मार्बल के तेज किनारे से टकराई। एक धड़कते खामोश लम्हे के बाद खून का एक बारीक सा फव्वारा उसके कान के पास से फूटा। उसकी आंखें चंद सेकंड खुली रहीं। उसने कांपती पलकों के पीछे से रईस को देखा, फिर फजर को, जो हवासों में नहीं थी। वो जैसे अपनी जगह जम गई थी। एक गहरी, बहुत गहरी सिसकी के साथ अरुजा के होठों से एक टूटी हुई सरगोशी निकली। मैं या वो? पलकें लरजी और फिर उसका सर बेजान हुआ और एक तरफ को ढलक गया। अरुजा! वो तड़प कर उसकी जानिब बढ़ा, उसके कंधों को पकड़कर झिंझोड़ा। आंखें खोलो, मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा था। उसकी आवाज़ टूट कर बिखरती गई। फर्श पर अरुजा का खून फैलता जा रहा था। उसकी आंखें बंद थी, सांसें बहुत खफीफ, जैसे वो जिंदगी और मौत के दरमियान अटकी हुई हो। पीछे फजर लरजती टांगों के साथ दीवार से फिसल कर जमीन पर बैठ गई थी। उसके होंठ चुप थे, गाल पर खून था और आंखों में एक ऐसा खौफ था जो शायद अब कभी खत्म ना होगा। वो अपनी हथेलियां लबों पर रखे उस टूटते, बिखरते, मरते हुए मंजर को देख रही थी। वो किसी को मरते नहीं देखना चाहती थी। कमरे के ऊपर लगी अधखुली जली ट्यूबलाइट एक आखिरी बार धड़क कर बुझ गई। पूरा कमरा गहरी मुकम्मल तारीकी में डूब गया। स्वीट की अधजली ट्यूबलाइट बुझ चुकी थी, मगर एक सफ़ेद फ्लोर लैंप कोने में टिमटिमा रहा था, जिसकी कांपती हुई रोशनी फर्श पर बिखरे खून, शीशे के टुकड़ों और तबाही के मंजर पर पड़ रही थी। चंद मिनट पहले तक जिस कमरे में चीखें, धमकियां की आवाज़ गूंज रही थी, अब वहाँ एक कब्रिस्तान जैसी गहरी भारी खामोशी उतर चुकी थी। मार्बल के फर्श पर खून के फैलते हुए धब्बों के दरमियान अरुजा नीम बेहोश पड़ी थी और रईस उसके सर के नीचे अपना बाजू रखे घुटनों के बल बैठा था। उसके हाथ कांप रहे थे, सांस तेज थी और आंखों में बेक वक्त सदमा, असियत, एक ऐसी शिकस्त थी जो उसने अपनी बादशाहत भरी जिंदगी में कभी महसूस नहीं की थी। फिर अरुजा की सांस हल्की सी फड़फड़ाई और पलकें लरजी। रईस ने झुककर उसकी नब्ज पर हाथ रखा। उसकी आवाज़ एक टूटी हुई सरगोशी थी। अरुजा, आंखें खोलो। उसने धीरे धीरे पलकें खोली। जख्मों ने उसके चेहरे को भारी बना दिया था, मगर आंखों में अब भी वही जुनून की आखिरी चिंगारी बाकी थी। उसके फटे हुए होठों पर एक जख्मी असियतनाक मुस्कुराहट उभरी। चुनना होगा आपको बॉस। वो सरगोशी करती हुई हंसी। उसकी हंसी में शीशे की किरचियाँ थी। मैं या वो? रईस के दिल पर किसी ने नुकीला पत्थर रख दिया। नहीं। उसकी आवाज़ कांप गई। अरुजा, मैं किसी को मरने नहीं दूंगा। प्लीज़, हम बात करेंगे। बात? वो फिर हंसी, एक जख्मी खोखली हंसी। आप बातें नहीं, फैसले करते हैं। मत करो ये सब, वो इल्तिजाइया लहजे में बोला। अब की बार रईस औरंगजेब कोई बादशाह नहीं था। वो बस एक टूटा हुआ बेबस इंसान था। मगर अरुजा ने गर्दन मोड़कर पास पड़े पिस्तौल को देखा, जो सोफे के नीचे पड़ा था। उसकी आंखों में खून उतरा। होश में आओ अरुजा। अरुजा ने आंखें सीधी करके उसकी तरफ देखा। होश में तो अब आई हूँ। और हल्की सरसराहट के साथ उसके लबों पर एक बेआवाज वहशतनाक कहकर दौड़ गया। किसी को कुछ नहीं होगा। वो बुलंद आवाज में कहता हुआ उठा और तेजी से दरवाजे की तरफ लपका ताकि डॉक्टर को बुला सके, लेकिन चक चक पिस्तौल की कोक होने की वो धाती आवाज फिजा में गूंजी। रईस के कदम वहीं ठिठक गए। वो मुड़ा। मंजर कयामत खेज था। अरुजा घुटनों के बल बैठ चुकी थी। पिस्तौल दोनों हाथों में थामा हुआ था और आंखों से ऐसा लग रहा था जैसे उनसे आंसुओं के बजाय खून बह रहा हो। पिस्तौल का रुख सीधा फजर की तरफ था, जो दीवार के साथ साकित बैठी थी। एक दीवार दरवाजे के पार उसका शौहर था। वो भागकर जहाँ जाती। आपको चुनना होगा बॉस। उसकी आवाज़ में अब कोई कपकपाहट नहीं थी, सिर्फ जुनून, वहशत और एक हतमी फैसला। मैं या ये? रईस ने दोनों हाथ हवा में उठाए जैसे हथियार डाल रहा हो। अरुजा, नहीं, खबरदार। अरुजा के लबों से सांस का एक तवील धुएं जैसा मरगोला निकला। उसने फजर को ऐसे देखा जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को रूह का जायजा ले रहा हो। क्या है तुम में ऐसा कि पूरी दुनिया तुम्हारी गिर्द घूमने लगती है? रईस ने लम्हा भर को फजर के बेबसी को देखा और फिर आहिस्ता से अपना कोट हटाया। कोट के नीचे छुपी उसकी अपनी गन थी। उसने आहिस्ता से उसे निकाला और अरुजा की तरफ तान लिया। अरुजा, नहीं। उसका लहजा रुला देने वाला था, खबरदार करने वाला था, इल्तिजा करने वाला था, टूटा हुआ। रईस, नहीं। उसे पिस्तौल निकालते देखकर फजर खौफ से कपकपाई। लेकिन अरुजा की गर्दन हल्की सी नपी में हिली। लबों पर एक पथरीली फातिहाना मुस्कुराहट उतर आई। उसने ट्रिगर दबा दिया। गोली फजर के कदमों के ऐन पास दीवार में लगी थी।
कंकरियों का छोटा सा धमाका हुआ। फजर घबरा कर उछली और अपने कमर दीवार से चिपका दी, मगर वो भागी नहीं। ठीक उसी लम्हे रईस की गन से फायर हुआ। गोली अरुजा के बाजू के गोश्त को चीरती हुई गुजर गई। वो उसे मारना नहीं चाहता था, सिर्फ खबरदार किया था। उसका बाजू पीछे की तरफ झटका खा गया। आंखों में लम्हा भर को तकलीफ का गहरा साया छाया, मगर उसने पिस्तौल हाथ से नहीं गिरने दी। वो ट्रेंड और मजबूत थी, इतनी जल्दी मर नहीं सकती थी। अरुजा, वो चीखता हुआ तेजी से कदमों से उसकी तरफ बढ़ा। वो हाँफती हुई खून बहाते बाजू के साथ अब भी पिस्तौल थामे खड़ी थी। बार बार नफरत से अपने फटे हुए होठों से वही अल्फाज दोहरा रही थी, आपको चुनना होगा, ये या मैं। अरुजा नहीं। रईस ने दहाड़ के साथ अपनी गन नीचे की। अरुजा ने सर मोड़ा, फजर को देखा और पिस्तौल दोबारा सीधा उसकी जानिब कर दी। क्या तुम जानती हो? वो बहुत आहिस्ता जहर में बुझे हुए लहजे में बोली। तुम्हारे आने से पहले हर दिन हर रात मैंने उन दो कत्थई आंखों को अपने लिए तड़पता देखना चाहा, लेकिन फिर एक दिन उन आंखों में तुम्हारी झलक दिखाई देने लगी और मैं मरने लगी। रईस का हाथ कँपाया। वो चंद कदम आगे बढ़ा। अरुजा बस। वो रो देने को था, हलक में अजियत का गोला अटका हुआ था। मैं या ये? फजल ने पीछे कदम लिए, कुछ सोचते हुए, ताकि बाहर से कोई मदद ला सके, अपना फ़ोन उठाकर किसी को फ़ोन मिला सके। वो उठी और कदम कदम उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसकी उंगली झटकों के साथ ट्रिगर पर घुसी जा रही थी। उस पल रईस ने उसकी आंखों में हतमी चमक देखी। ट्रिगर पर उंगली दबी और तभी रईस ने पल भर की ताखीर भी नहीं की थी। उस बार गोली अरुजा के पिंडली को चीरती हुई गुजर गई थी। वो लड़खड़ा गई। बस कर दो अरुजा। वो अब उसके सर पर खड़ा था। अरुजा के चेहरे पर तकलीफ के आसार फैल गए। बस अब बहुत हो गया। उसका लहजा बदल गया था, मगर गिरी पड़ी अरुजा ने पिस्तौल वाला हाथ उठाया। एक नज़र रईस को देखा। मैं या वो? आखिरी सवाल। उसने फायर किया, मगर निशाना फजर नहीं थी। वो उसके करीब ग्लास डोर को लगा, जो छन्ना कैसे टूट गया, और उसके साथ ही एक के बाद दीगरे 3 फायर हुए। 3 फैसले जो रात की तारीकी में गूंजे, 3 धमाके जिन्होंने सब कुछ खत्म कर दिया। पहली गोली ने उसे पीछे झटका दिया, दूसरी ने उसके जिस्म को शौक में जमा दिया, और तीसरी ने वक्त को हमेशा के लिए जकड़ लिया। वो बेयकीन खुली आंखों से रईस को देख रही थी। चेहरे पर हैरानी थी, गुस्सा नहीं, नफरत नहीं, सिर्फ एक गहरी असियतनाक हैरानी, जैसे वो इस अंजाम का तसव्वुर भी न कर सकी हो, जैसे तसव्वुर करके भी यकीन नहीं कर रही हो, जैसे मोहम सी उम्मीद भी टूट गई हो। सफ़ेद मार्बल पर खून की सुर्ख लकीरें ऐसे फैलने लगी जैसे किसी ने लाल स्याही का दरिया बहा दिया हो। फजर की आंखें फट गई, उसके घुटने ढीले पड़ गए। वो वहीं दरवाजे के पास एक झटके से ज़मीन पर गिरती चली गई। टूटा हुआ कांच उसके हाथ पैर में घुस गया था। उसके होंठ कँपाए, मगर आवाज़ नहीं निकली। अरुजा की आंखें अधखुली रईस पर जमी थी। उसने एक टूटी हुई सांस ली, एक आखिरी हिचकी, बेरब्त अल्फाज। अब पता चला मैं मोहब्बत क्यों। रईस साकित खड़ा था। पिस्तौल उसके हाथ से फिसला और खुद घुटनों के बल अरुजा के सर के करीब गिर गया। न न नहीं अरुजा नहीं। उसके लफ्ज़ बिखरने लगे। वो उसका चेहरा अपने हाथों में थामना चाहता था, अपने बाजू में खींचकर उसे अपने गोद में ले लिया। अरुजा, आंखें खोलो, खुदारा आंखें खोलो। उसने आंखें खोलने की कोशिश की और फिर आंखें खुली। उसकी पलकें लरज़ी, एक आखिरी हल्की सी झिझकी, और उसका सर रईस के बाजू पर हमेशा के लिए ढलक गया। गहरी खामोशी, और वो लम्हा वक्त के सीने में दफन हो गया। वो उसके गाल थपथपा रहा था, उसके बाल सहला रहा था, वो उसे उठने को कह रहा था, वो उसे सांस लेने को कह रहा था। अरुजा, सिर्फ यही एक लफ्ज़, मगर उस लफ्ज़ के अंदर एक पूरी उम्र की तारीख, वफादारी और असियत थी। उसने अरुजा का सर ऊपर करते अपना चेहरा उसकी पेशानी से टिका दिया और किसी टूटे हुए बच्चे की तरह रोने लगा। उसके आंसू अरुजा के चेहरे पर गिर रहे थे। ये वो बादशाह था जिसने आज अपनी सल्तनत, अपनी वफादार सिपाही, अपनी रूह, सब कुछ हार दिया था। कुछ फासले पर ज़मीन पर बैठी फजर के आंसू साकित थे। उसे अपना सांस घुटता महसूस हुआ। कहीं अंदर से एक आवाज़ उभरी, देखा, तुम्हारा वजूद आज फिर एक जिंदगी निकल गया। वो बेइख्तियार अपने सर के गिर्द बाजू लपेट कर नीचे झुक गई, जैसे किसी ना ख़त्म होने वाले काबूस में कैद हो गई हो। पता नहीं कितनी देर गुजर गई, वक्त रुक गया था। फिर अचानक रईस ने आहिस्ता से अरुजा को नीचे मार्बल पर लिटा दिया।
وہ بمشکل کھڑا ہوا، قدم جیسے پتھر کے ہو گئے تھے۔ وہ فضل کے قریب آیا اور پنجوں کے بل بیٹھ گیا۔ فضل نے سر اٹھایا۔ وہ عروضہ، آپ نے اسے؟ اس کے لبوں سے ٹوٹے پھوٹے الفاظ نکلے۔ اس نے عروضہ کو مار دیا تھا، صرف اسے بچانے کے لیے۔ وہ اس کا گارجین تھا، پھر اسے کیسے مرنے دے سکتا تھا؟ اس نے اپنا لرزتا ہاتھ فضل کے سر پر رکھا اور پھر اسی ہاتھ پر اپنے لب رکھ دیے۔ پھر بہت آہستہ آدھی سانس میں کہا، تمہارے لیے کچھ بھی۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئی لیکن وہ کچھ بول نہ سکی۔ رئیس نے اپنا چہرہ پیچھے ہٹایا، اٹھا اور بغیر پلٹ کر دیکھے سویٹ سے باہر نکل گیا۔ جیسے ہی وہ دروازہ پار کر کے راہداری میں آیا، باہر کھڑے عروضہ کے آدمی جنہوں نے سویٹ کو گھیر رکھا تھا فوراً سویٹ کے سمت بھاگے۔ اب یکدم قدموں کی دوڑ، لوگوں کی چیخیں اور کوڈ بلو کی آوازیں گونجنے لگی۔ مقررہ وقت پر سب ہو رہا تھا، سب پلان کے مطابق۔ یہ عروضہ کا پلان تھا، کہیں گڑبڑ ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ اور رئیس خاموشی سے چلتا جا رہا تھا۔ لمبی خالی راہداری، بجلی چپکنے لگی جیسے ہاسپٹل کی عمارت بھی کانپ رہی ہو۔ وہ آج ہار گیا تھا۔ وہ چلتا رہا، پھر اچانک کسی نے اسے پکڑ کر ہاسپٹل کے پچھلے دروازے سے باہر نکال دیا۔ وہ ایک سنسان سڑک پر آ کر رکا تھا۔ فضا بھاری تھی، بارش کی ہلکی بوندیں آسمان سے گرنے لگی۔ وہ ایک پل کھڑا رہا، پھر گھٹنوں کے بل سڑک پر گر گیا۔ اپنے ہاتھوں کو دیکھا، وہ عروضہ کے خون سے بھرے ہوئے تھے۔ اس نے ہولے سے انگلیوں کو چھوا، پھر یکدم اس کے اندر سے ایک تیز زخمی جانور جیسی چیخ نکلی۔ وہ دہاڑا۔ یہ ایک زخمی شیر کی چیخ تھی جو پوری رات، پوری فضا، پورے شہر میں گونجی۔ وہ سڑک کے وسط میں بیٹھا بیک وقت روتا اور چیختا رہا۔ بارش کے قطرے اس کے خون آلود ہاتھوں کو اور آنسوؤں سے مل کر بہنے لگے تھے، جیسے آسمان بھی اس کے گناہوں اور غموں کو دھونے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ اور اسی لمحے سویٹ کے اندر عروضہ کے بے جان آنکھیں ٹکٹکی باندھے چھت کو دیکھ رہی تھیں۔ عملہ اسے اٹھا رہا تھا۔ ایک ہی مضبوط آواز گونجی، میڈم نے کہا تھا میری بڑی جلد گھر پہنچا دینا۔ وہ جانتی تھی اس کا باپ انتظار کر رہا ہوگا۔ سویٹ کے اندر مراد اور میسم بھاگتے ہوئے داخل ہوئے، تب تک دیر ہو چکی تھی۔ فضل خاموشی سے فرش پر بیٹھی کانپ رہی تھی۔ اس رات کے خون اور فیصلوں میں ہمیشہ کے لیے قید ہو کر وہ عروضہ کے پہلی بار ہاسپٹل میں ملی تھی، اور آج آخری ملاقات بھی ہاسپٹل میں۔ یہ رات محبت کی نہیں، خون کی تھی۔ یہ رات ایک بادشاہ کو ایک انسان میں بدل دینے والی تھی۔ دور، کچھ دور، راہداری کی نیم تاریک موڑ پر وہ خاموشی سے کھڑی تھی۔ منار مراج مدھم روشنی میں اس کا چہرہ آدھا سایوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ سفید دیوار پر پڑتا اس کا سایہ مکڑی کے پھیلتے جال کی طرح لگ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ کی انگلیاں آہستہ آہستہ دروازے کی فریم کو چھو رہی تھیں، جیسے اس نے ابھی کسی نازک دھاگے کو ٹٹول رہا ہو۔ اور تب وہ چیخ، وہ زخمی شیر کی دل پھاڑ دینے والی چیخ، ہاسپٹل کے سینے کو چیرتی ہوئی فضا میں بلند ہوئی۔ راہداری کی بتی ذرا سی لرزی اور منار کی پتلیوں میں ایک منجمد روشنی بھڑک اٹھی۔ ہونٹوں پر ایک ایسی خاموش، خفیف سی مسکراہٹ ابھری جو کسی عام انسان کے چہرے پر نہیں آتی۔ یہ وہ مسکراہٹ تھی جو صرف جال بننے والی کو اپنی محنت کے پورے ہونے پر نصیب ہوتی ہے۔ اس نے پلکوں کے پیچھے سے ایک گہری تیز سانس لی اور پھر دھیرے سے اپنے سر کو ایک طرف جھکایا، جیسے دور کہیں کوہر میں پھنسا ہوا منظر پوری وضاحت کے ساتھ اتر آیا ہو۔ اور کھیل شروع ہوا۔ اس کی سرد آواز ہوا میں یک لہر کی طرح بکھر گئی۔ کافی دیر تک وہ ساکت رہی، پھر اس نے اپنے پیر پیچھے سرکائے اور دھیرے سے قدم موڑا۔ اس کی اونچی ایڑیاں فرش پر پھسلتی تو ہلکی سی ٹھنڈی آواز پیدا ہوتی، جیسے کوئی دھاگا شریان کے اندر رینگ رہا ہو۔ اس نے آخری بار پلٹ کر اس بند دروازے کو دیکھا جس کے پیچھے خون، چیخیں اور ایک ٹوٹا ہوا بادشاہ سب ہار گیا تھا۔ اور اس کی آنکھوں میں ایک ایسے سکوت کا سایہ اترا جو خالی نہیں تھا، وہ سکوت سازشوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس کے ہونٹ ہلے، بہت آہستہ، جیسے وہ کسی غیر مرئی روح سے بات کر رہی ہو۔ ایک ہار اور ایک نئی چال۔ پھر اس نے نگاہیں جھکائیں اور خاموشی سے اندھیرے کے اندر تحلیل ہو گئی، ایسے جیسے کبھی وہاں موجود ہی نہ تھی، مگر اس کی موجودگی کی سرد سنسان جھلک راہداری کی دیواروں پر خون کی مہک کے ساتھ ہمیشہ کے لیے نقش ہو گئی۔ جاری ہے پارٹ 2 اگلے مہینے، قسط 21 پارٹ 1 اس باب کا ایک رخ تھا، دوسرا رخ پارٹ 2 میں انشاءاللہ۔ تو یہاں ہوتا ہے یہ پارٹ کمپلیٹ، اور مجھے اس سین کا کافی زیادہ ٹائم سے انتظار تھا جب سے عروضہ نے وہ پکس دیکھی تھیں۔
فضر اور ولی کی، تو اتنا تو یقین تھا کہ عروضہ کا ریئیکشن اتنا ٹھنڈا نہیں ہوگا، لیکن رائٹر نے اتنا زیادہ اچھا لکھا ہے یہ سین کہ میں بتا نہیں سکتی، مجھے تو کافی زیادہ پسند آیا۔ اور مجھے عروضہ اور رئیس کی بانڈنگ والی اور نینسی سے زیادہ پسند تھی، تو مجھے کافی دکھ ہوا، نینسی سے زیادہ دکھ ہوا ہے عروضہ کی ڈیتھ کا۔ لیکن کہیں نہ کہیں معلوم تھا کہ عروضہ کی ڈیتھ ہوگی، لیکن اس طریقے سے ہوگی یہ نہیں سوچا تھا۔ اس پارٹ میں عروضہ تھی رئیس کے ساتھ، تب رئیس کے ساتھ اتنا برا ہوا ہے، تو نیکسٹ پارٹ میں تو منال کیا کرنے والی ہے نہ جانے، تو کافی زیادہ برا ہونے والا ہے رئیس کے ساتھ۔ اور یہ سین اور بھی زیادہ اچھا ہو جاتا اگر میں ریل نہیں دیکھتی۔ میں نے خود ہی اسپوائلر دے دیا خود کو، میری عادت ہے میں جب تک ایپیسوڈ کمپلیٹ نہیں کر لیتی تو میں ریل نہیں دیکھتی، اور آج پتہ نہیں کیوں میں نے دیکھ لیا۔ اب مجھے خود ہی بہت زیادہ غصہ آ رہا ہے خود پر، اس لیے میں نے اسٹارٹنگ میں ہی آپ کو کہہ دیا تھا کہ کمنٹس نہیں دیکھنا اگر اسپوائلر نہیں چاہیے تو۔ اور اب اس کے بعد نیکسٹ ایپیسوڈ کا ویٹ کرنا اور بھی زیادہ مشکل ہے۔ ویسے رائٹر نے کہا تھا کہ 22 ایپیسوڈ میں کمپلیٹ ہو جائے گی اسٹوری، لیکن اب 21 ایپیسوڈ کا رائٹر نے 2 پارٹ میں کر دیا ہے، تو فرسٹ پارٹ تو اپلوڈ کر دیا ہے، لیکن اب سیکنڈ پارٹ لاسٹ ایپیسوڈ ہوگا یا پھر 22واں ایپیسوڈ آئے گا یہ ابھی کنفرم نہیں ہے، تو جیسے ہی کچھ اپڈیٹس ملیں گی تو میں شیئر کر دوں گی۔ تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں۔ خدا حافظ، اپنا خیال رکھنا اور دعاؤں میں یاد رکھنا۔